also founder of Policy Analyst Consulting. He is a chartered accountant and completed the advanced program for project management from IIM Kozhikode, armed with an executive program in sales and marketing from IIM Calcutta. He has coached and consumed over 17,500 people in the last 17 years. Sales and productivity go hand in hand. Success in one often depends on master of the other. And today we have the privilege from someone who has cracked the code on both. Whether you are looking to close more deals, manage your time effectively, or simply work smarter rather than harder, Mr. Manan Vasa sir has the tools and strategies and motivation to help us there. As we engage in this insightful session with Mr. Manan Vasa sir, let us seize the opportunity to gain valuable knowledge. Without further ado, please join me welcoming Mr. Manan Vasa sir. Thank you, sir. Do show clapping sign on your Zoom. Thank you so much, Ashwini. A lot of people have introduced me before, but I have not heard so much of sincerity and such niceness about me in a long time. So it really means a lot. It shows the kind of work that you did on writing the speech and saying it to people. So thank you so much. Really humbled. Thank you for introducing me. How many of you are over here because you have to be and you don't have a choice? Everybody come with the will, man, don't worry. Okay, so that's one way. That's one way of participating today. And the other way of participating is you all can switch on your camera and ask yourself, अगर मैं ये बंदे को 1.5-2 घंटा देने वाला हूँ तो मुझे वापस रिटर्न में कुछ मिले. So for that, I'm going to ask you people another question. How many of you are absolutely serious about making much more money? Let's say making 2 times the money that you're currently making right now. So let's say your business is, for example, let's say your business is 5 crore AUM, for example. How many of you are really interested in doing 10 crore AUM in the next 6 months without having to invest any more money? Actually saving 2 to 3 hours every day for the rest of your life, reducing your stress to half, and with almost zero risk. So if you are somebody who's really interested, can you please type interested in the chat box? And those of you who are interested, please turn on your camera. आपकी शक्ल दिखेगी तो मैं आपसे बात कर पाऊंगा. अगर आपका वीडियो बंद है, आपका कैमरा बंद है, हमको समझ में ही नहीं आएगा कि आप हो या नहीं हो, और मेरा आपके प्रति ध्यान नहीं जाएगा, तो आप क्या सुन रहे हो क्या नहीं सुन रहे हो समझ में नहीं आएगा. सो ये लेक्चर नहीं है, ये एक वर्कशॉप मोड में हम लोगों ने ये इस चीज को डिजाइन किया हुआ है. Therefore, constantly you will have to unmute yourself, write something in the chat box, ask questions. It is going to be an interactive session. बाकी किसी बंदे को 2 घंटा सुनना बहुत डिफिकल्ट होता है, खास करके जब आप फाइनेंशियल मार्केट्स और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में हो. आप लोगों को बोलने की आदत है, सुनने की आदत नहीं है, तो कोई जबरदस्ती 2 घंटा बोलेगा, आपसे लिया नहीं जा पाएगा. कुछ लोग बड़े बेड पे लेट के सुन रहे हैं, ऐसा मत करो. ये विद्या का विषय है, ये ज्ञान का विषय है. लीस्ट यू कैन डू इज क्रॉस योर लेग्स एंड सिट एट वन प्लेस. You can take rest, of course, but don't sleep and listen to me. It will not work. Without risk, how is it possible? Daya, very good question. We'll cover that. Preeti ma'am, हो सके तो बैठ के सुनिए. Unless you are really having a back issue or something, then I understand that you are lying around. बाकी मैम ये विद्या नहीं चढ़ेगी अगर आप बैठ के नहीं सुनोगे तो. आई एम रियली सॉरी, मेरी आंखें और मेरे कान बहुत पक्के हैं, तो मुझे बहुत सारी चीजें दिख जाती है और याद रह जाती है. सो प्लीज डोंट टेक ऑफेंस ऑफ दैट, इट्स जस्ट एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड. ओके, सो करीब करीब यहाँ पे 95 पीपल आर देयर, और कैमरा करीब करीब 24-25 लोग का चालू है. सो आई फोकस ऑन यू गाइस जिनका कैमरा चालू है. बाकी के लोग, आप लोग जैसे नेटफ्लिक्स देखते हो, जैसे यूट्यूब देखते हो, आप मुझे देख सकते हो. पसंद आया तो ठीक है, पसंद नहीं आया, बोर हो रहे हो, तो जो करना है करो, पर आपकी जिंदगी के 2 घंटे बिगड़ जाएंगे. आई प्रॉमिस यू, कपिल शर्मा इज फार मोर एंटरटेनिंग देन मी. सो इट इज़ बेटर टू वॉच यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स रादर देन लिसनिंग टू मी, क्योंकि मैं कुछ कुछ चीज़ें बोलूंगा वो आपको लगेगी.
और आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप एंटरटेनमेंट के लिए आए हो तो आप गलत जगह पे हो. आई एम रियली टेलिंग यू, नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब आर बेटर प्लेसेस देन मी for you to actually be able to gain much more value. Okay, so with this, how many of you, one more time, are really serious about doubling your business, doubling the kind of money you are making in the next 3 months compared to what you're already making right now? Please type interested in the chat box and please turn on your cameras so that I know how many people are actually interested. Jyoti, good to see you. काफी टाइम के बाद आपको देखा. Okay, all right. Interested, sir. Very much interested. Wonderful, Rajesh ji. Thank you so much, sir. You all can always unmute and keep talking. Interested, sir. Interested. Yes. वापस बोलिए. Interested, sir. Wonderful. Thank you so much. Okay. So if you are interested, my question to all of you is very simple. Business double करने के लिए क्या लगता है? So let's say आप महीने का आज 5 लाख रुपया कमा रहे हो और अगर आपको महीने का 10 लाख रुपया कमाना है तो इट इज नेचुरल कि आपको ज्यादा बेचना पड़ेगा. Yes or no? So for you to Yes. increase your sales, Yes. what do you need? N- For you to Need to increase invest your time. sales, वेरी गुड, यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम. पर क्या लगेगा बिजनेस को डबल करने के लिए? बहुत सिंपल सवाल है. कस्टमर्स बढ़ाने पड़ेंगे. कस्टमर्स बढ़ाने पड़ेंगे. Customers, ज्यादा कस्टमर्स को clients, बेचूंगा. सो दो दो सिंपल clients. स्ट्रेटजी है, राइट? ज्यादा Yes. कस्टमर्स को बेचूंगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा. यस और नो? Yes. तो वही कस्टमर्स को ज्यादा प्रोडक्ट्स और ज्यादा सर्विसेज बेचूंगा तो मेरा नंबर बढ़ेगा. मेरा नंबर बढ़ेगा तो मेरा सेल्स, मेरा प्रॉफिट्स बढ़ेगा. यस और नो? Yes. अब कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए या कस्टमर्स को ज्यादा बेचने के लिए क्या लगेगा? नॉलेज लगेगा, प्रोडक्ट्स बढ़ाने एफर्ट पड़ेंगे लगेगा, पहले तो. प्रोडक्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे. व्हाट एल्स? हम्म. Knowledge. आ गया ना? People कस्टमर have the knowledge to convince. नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा. लोगों को कैसे कन्विंस करे वो नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा. व्हाट एल्स? सर्विसेज ज्यादा करना पड़ेगा. सर्विसेज. सर्विस ज्यादा देनी पड़ेगी. वेरी गुड. व्हाट एल्स? कॉन्फिडेंस, कस्टमर कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा. वो कस्टमर का knowledge. कॉन्फिडेंस गेन करने के Trust लिए build क्या करना करना पड़ेगा. पड़ेगा? मार्केट के Trust नॉलेज build को करना अपडेट पड़ेगा, करना sir. पड़ेगा. ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको प्रॉम्प्ट्स देने तो उसके पड़ेंगे. लिए प्रॉम्प्ट्स कैसे देते हैं उसके हम लिए लोग? हमें यस. ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सर एक तो सर्विस देनी पड़ेगी, जानकारी होनी चाहिए हमें, सो दैट ही मस्ट बी he must feel that he is in safe hands. या. व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? सो बिजनेस डबल करने के लिए ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग लोग बढ़ाने पड़ेंगे, टीम बढ़ाने पड़ेंगे, कुछ ब्रोशर पैम्पलेट डालने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, सेलिंग स्किल सीखना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, कन्विंसिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा, खुद का सेल्फ डेडिकेशन, खुद की मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा. यस और नो? ये Yes. सारी चीजों के पीछे एक्चुअली दो ही चीजें हैं. Yes. एक है टाइम और दूसरा है पैसा. यस और नो? Yes. Yes. ये सारी चीजों के लिए मुझे टाइम डालना पड़ेगा, या तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे और कोई बंदा मेरे लिए करके देगा. अग्री और डिसअग्री? Agree, sir. Agree. अब सर मेरे पास जितना पैसा था वो तो मैंने डाल दिया. अब मेरे पास और कैपिटल तो है नहीं लगाने के लिए. तो क्योंकि मेरे पास और कोई कैपिटल नहीं है लगाने के लिए, सर इतने कैपिटल के अंदर जितना हो रहा है उतना मैं कर रहा हूँ. अभी मैं कहीं से भी नया कैपिटल लेके आऊंगा तो मेरा रिस्क बढ़ जाएगा, मुझे उनको ब्याज देना पड़ेगा. माय बिजनेस विल बिकम रिस्कियर. A lot of us don't have money. मान लो somebody has money, तो उसका रिस्क टेकिंग एपिटाइट तो लिमिटेड है ना. मतलब धंधा डबल करने के लिए ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा. मैं जितना रिस्क ले सकता हूँ उतना मैं लेके बैठा हूँ. इसके बियॉन्ड मेरी रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, तो मेरे से और बिजनेस नहीं हो पा रहा है. अग्री और डिसअग्री? दूसरा लॉजिक है, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स. दूसरा लॉजिक है, आज मैं 8-10 घंटे काम करता हूँ और मान लो मैं महीने के 2-3 लाख रुपया कमा रहा हूँ. अगर मैं 15-16 घंटा काम करने लगूँ तो मैं 2-3 लाख से 3.5 लाख रुपए के आसपास कमा पाऊंगा. यस और नो? पर मनन, मैं ये जिंदगी के कितने साल करूंगा? 30 की उम्र तक शादी नहीं हुई तब तक तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक बार मेरी शादी हो गई, बीवी बच्चे आ गए, तो मुझे उनको भी टाइम देना पड़ता है. मेरे उनको भी लेके कोई ना कोई सपने होते हैं. एंड आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर देम ऑल्सो. यस और नो?
फिर मेरे को धर्म ध्यान में टाइम देना होता है, सोशल वर्क में टाइम देना होता है, समाज की दूसरी चीजें भी होती है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं पूरा टाइम काम ही करता रहूं, यस और नो। तो इवन दो मनन मुझे समझ में आता है कि मैं और टाइम डालूंगा तो मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ, एक लिमिटेशन है। बियॉन्ड द टाइम 8-10 घंटे के ऊपर काम नहीं कर पाती, इट इज नॉट वेरी सेल्फ सस्टेनेबल इन नेचर, यस और नो। तो धंधा डबल करने के लिए पैसा लगता है, टाइम लगता है। और मनन, क्योंकि मेरे पास दोनों ही नहीं है, मैं जितना कर रहा हूँ उतना कर लेता हूँ, फिर 15-20-25 तक का ऊपर नीचे होता है। लेकिन मनन 2 गुना 4 गुना 6 गुना तो नहीं हो पाएगा। अग्री और डिसअग्री? और किसी भी तरह से आप agree, पैसे का और agree. टाइम का बंदोबस्त करोगे तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाएगा, आपका स्ट्रेस बिगड़ जाएगा, और आपका बिजनेस में रिस्क भी बढ़ जाएगा। और उसकी भी एक क्षमता है, उसके बियॉन्ड आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए मनन भाई, ये दीप गज में जो भी बोले, आप जो भी बोले, ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल लगता नहीं है। अग्री और डिसअग्री? नाउ व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि पिछले 4 साल में मैंने कुछ 1600 लोगों के साथ काम किया है, और वो 1600 लोगों में से 89% ऑफ देम हैव डबल्ड देयर बिजनेस और डबल्ड द रेट ऑफ ग्रोथ इन देयर बिजनेस विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मोर टाइम, विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मोर मनी। वुड यू बी इंटरेस्टेड? और वो 11% लोग गरीब नहीं हुए, उनका 2-3 गुना नहीं हुआ है, उनका 250 हुआ, 150 हुआ, 125 हुआ, 50 हुआ। क्या आपको चलेगा? ये 1600 लोगों में से 94% ऑफ द पीपल, they are saving 2 to 3 hours extra every day for the rest of their life doing whatever it is that they want to. ये 1600 लोगों में से करीब करीब 96% ऑफ द पीपल, देयर अबिलिटी टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स, अबिलिटी टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स में आप ध्यान से सोचोगे तो कस्टमर भी आ जाता है, सेल्स वाला कस्टमर भी आ जाता है, सप्लायर भी आ जाता है, और एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं। देयर अबिलिटी टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स, इट हैज इंक्रीज 2 to 3 times, and 84% ऑफ देम देयर वर्क लाइफ बैलेंस हैज इंप्रूव 3 to 4%। कितने लोगों को इसमें इंटरेस्ट होगा? ये वर्कशॉप उनके लिए है। इफ यू स्विच ऑन योर कैमरा, इफ यू लिसन टू मी फॉर द नेक्स्ट 1.5-2 hours, आई गिव यू वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी प्रैक्टिकल वेज ऑफ एक्चुअली बीइंग एबल टू डू सो। और आपको भी एविडेंस मिल जाएगा कि ये सारी चीजें लोग कैसे कर लेते हैं। द आंसर इज वेरी सिंपल। द वे टू डू दिस इज टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या? आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। व्हाट इज आउटपुट फॉर ह्यूमन बींग्स? Your dreams, desires, ambitions, passions, goals, and hobbies, when they are fulfilled, they are called output. What will a 90-year-old Anuj Desai say to a 40-year-old Anuj Desai कि पिछले 50 साल आपने जिंदगी में क्या उखाड़ा, आपने क्या हासिल किया? Is this not the way you measure your own success and you measure success of people around you? तो आपने जितने पैसे कमाए, आपका जितना AUM हुआ, आपने जितने ट्रिप्स मारे, आपने जितने अवार्ड्स जीते, आपने मम्मी पापा के नाम पे कितना डोनेशन किया, आपने कितने मंदिर बनाए, इज दिस नॉट व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? आप कितने कंट्रीज ट्रैवल किए, आप साल में कितने हॉलीडेज लेते हो, आपने कितने बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया पैसा, और जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया समीर जी, उसमें से कितने लोगों ने कितना रिटर्न निकाला, मैंने कितना रिटर्न निकाला? इज दिस नॉट द वे यू कंपेयर success of any human being on the planet? Yes or no? Yes. Yes. So Yes, sir, yes. क्या हम लोग ये सारी चीजों को रिजल्ट्स बोल सकते हैं? ये रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ इनपुट Yes, भी sir, लगता बिल्कुल बोल. है, बराबर है? ये रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ इनपुट भी तो लगता है, यस और नो? सो व्हाट इज Yes. द इनपुट नीडेड? फर्स्ट वन इज टाइम एंड सेकेंड वन इज एफर्ट। तो कैन यू ऑल लाउडली रिपीट विद मी, भले आपका माइक म्यूट हो, कैन यू लाउडली रिपीट विद मी? प्रोडक्टिविटी इक्वल्स Productivity equals रिजल्ट्स results Results divided by time into effort. Divided provided by Divided by time time into into effort. time into effort. सिंपल है। अभी मान लो आप 100 यूनिट का रिजल्ट निकालते हो 10 यूनिट ऑफ टाइम और 10 यूनिट का एफर्ट डाल के। तो अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं जहां पे आपके रिजल्ट्स जो है वो 100 के 200 हो जाए और आपका टाइम और एफर्ट 10 का 5 हो जाए, तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है आपका प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ा? 8 गुना।
Are you okay with this? Yes. अगर ये समझते हो तो बाकी का सेशन आपको और समझ में आएगा, क्योंकि पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाए बिना और कोई तरीका भी नहीं है फॉर यू टू मेक मच मोर मनी देन व्हाट यू आर मेकिंग राइट नाउ। क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत सारे लोगों की रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होती, बहुत सारे लोगों का रिस्क टेकिंग एपिटाइट नहीं होता। आजकल जमाना और दुनिया कुछ अलग है कि आप लोग स्टार्टअप देख रहे हो, लोगों का पैसा लेते हैं, जलाते हैं, और वो पैसा जला के वो लोग स्केल अप करते हैं, लेकिन उधर भी सक्सेस रेशियो इज नॉट ऑल दैट ग्रेट, राइट? इज वेरी रिस्की और हर एक के बस का भी नहीं है। और हम सब लोग फंड रेज कर पाए वो हमको मालूम भी नहीं है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी इंटरेस्टेड इन दिस? यस सर, बिल्कुल। This session is about, so let me quickly start with this. Is there anybody who has any questions about anything that I've covered so far? नो Okay. क्वेश्चन सो फार। Okay, all right. So I've done a lot of things right and wrong in the first 10 years of my life. So whatever learnings I got from chartered accountancy and IIMs, I transferred it to people. So मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया और उसकी वजह से लोगों की लाइफ में फ़र्क पड़ा। मैंने बहुत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम किया है, जहाँ पे 9 महीने के प्रोजेक्ट्स हम लोग 3-4 महीने में करते थे। तो इट यूज टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी फॉर पीपल एंड इट ऑल्सो ट्रांसलेटेड इनटू लॉट्स ऑफ प्रॉफिट्स. We also made people realize their gaps and elevated their levels of awareness. कि तो नॉलेज भी दिया, अवेयरनेस भी दिया, और इस तरह से काम करोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा आपकी लाइफ में। बाद में हमको रियलाइज हुआ खाली नॉलेज और अवेयरनेस देने से लोगों की जिंदगी में उतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ रहा है जितना पड़ना चाहिए, और लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो वी गेव पीपल टूल्स टू इंक्रीज देयर पर्सनल परफॉर्मेंस एंड देयर टीम परफॉर्मेंस, एंड निखिल, एज दे स्टार्टेड यूजिंग दीज टूल्स, देयर पर्सनल प्रोडक्टिविटी एंड देयर टीम प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी वेंट अप। और उसके बाद मुझे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रियलाइजेशन हुआ, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कि जब तक आपकी आदतें नहीं बदलती तब तक आपकी प्रोडक्टिविटी में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेट मी से दिस इन इंग्लिश टू यू इन अ डिफरेंट वे. योर प्रोडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ योर हैबिट्स. और जब तक आपकी आदतें नहीं सुधरेगी, कोई नई किस्म की प्रोडक्टिविटी पॉसिबल नहीं है. नाउ यू शुड नॉट बिलीव द स्टेटमेंट जस्ट बिकॉज आई हैव सेड दैट. So let me explain and substantiate this. The speed, the complexity, and the volume of work that you and I are doing today, isn't it far, far more than what we used to handle 5 years ago? आने वाले 5 साल में the speed, the complexity, and the volume of work that you and I will be handling, will it not be far, far more than what we are handling today? Yes. But if we carefully see, we Sir, developed 1 our minute, sir. own You are work. saying your productivity is habits, huh? Yes, Productivity is nothing but habits, huh? productivity is a function of your habits. Okay. Now, the speed, complexity, and volume of work has exploded in today's world, but we developed our habits, खास करके work related habits, somewhere around 18, 20, 22, 24 years of age. Yes or no? So काम कैसे करते, आउटपुट कैसे जनरेट करते, रिजल्ट कैसे निकालते, हमने वो जमाने में सीखा और हमने वो उम्र में सीखा. सो बेसिकली अगर आपकी उम्र 50 है तो आपकी आदतें 30 साल पुरानी है. अगर आपकी उम्र 40 है तो आपकी आदतें 20 साल पुरानी है. अगर आपकी उम्र 30 है तो आपकी आदतें 10 साल पुरानी है. Here is the question: are those people, is the environment, are your circumstances that you are working in, Sandeep, are they same as what they used to be 5, 10, 15, 20 years ago? But what about your habits? Most of your habits are still the same. और अगर मैं आपको पूछूंगा ना कि आपने आपकी कौन सी आदतें बदली, यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट. पर अगर आपको वो आदत मिल भी गई ना जो आपने बदली, तो आपको रियलाइज होगा मैंने फोर्सफुली वो आदतें बदली है. मैंने कोई अपनी पसंद से आदतों को बदलने के ऊपर कुछ खास लाइफ में काम अब तक किया नहीं है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. कितने लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हो? आप लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल क्यों करते हो? ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में सभी करते हैं। हाँ, पर आप लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल क्यों करते हो? स्मार्टफोन तो आज की वर्क लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, बिल्कुल नहीं, अदरवाइज बिल्कुल नहीं. मेरे को तो लगता है फोन निकाल दोगे तो आपकी वर्क लाइफ बैलेंस सुधर जाएगी. Yeah. Smartphone Without phone also you can live आधे with आधे planned से ज्यादा activities. काम तो फोन पे होते हैं ना, इसलिए कह हाँ, रहा हूँ। तो स्मार्टफोन की जरूरत है. स्मार्टफोन नहीं रखेंगे तो फिर तो लैपटॉप लेके घूमना पड़ेगा। आप लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हो क्योंकि मार्केट में बटन वाले फोन अभी मिलते नहीं है.
Yeah, और that's कोई right. वजह नहीं है कि आप लोग स्मार्टफोन क्यों इस्तेमाल करते हो। आप लोग अभी जूम पे उसके लिए मिल रहे हो, 5 साल पहले जूम नाम की चिड़िया क्या थी आपको मालूम भी नहीं था, मोस्ट ऑफ यू। हम लोग ये सेशन फिजिकली कर रहे होते, जूम पे ये सेशन शायद पॉसिबल ना होता 5 साल पहले। ये कोविड से सब पहले तो था ही नहीं, ऑलमोस्ट से पहले तो ना कुछ के था ही। बराबर था। हैव यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? सो आपने मजबूरी में आदतें बदली है, आपने खुद के ऊपर खास काम करके बहुत कम आदतों को बदला है आज तक। इतनी बात समझ में आई? सो द वर्ल्ड इज मूविंग एट 2x 3x 4x स्पीड and you are moving at 10 15 20%. Naturally you will complain about competition, naturally you will complain there is much more work to do, much less time available for me in, क्योंकि आपने खुद की आदतों के ऊपर काम करना आज तक किसी ने आपको बताया नहीं, दिखाया नहीं, सिखाया नहीं। किसी ने आपको बताया ही नहीं है कि आपके पास कुछ 1965 की आदतें हैं जो 2025 में काम ही नहीं करती। आज मैं आपको कुछ आदतें बता भी दूंगा, लेकिन उसका भी क्या फर्क पड़ेगा? जस्ट बिकॉज मैंने बता दिया उसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसका कुछ करने लगोगे। हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो हमने लोगों को बताया कौन सी आदतें आप नहीं छोड़ोगे तो आगे खतरा है और आपका स्ट्रेस बढ़ने वाला है, और आपको जो अचीव करना है वो अचीव नहीं कर पाओगे लाइफ में। फिर मैंने लोगों को वो भी बताया ये सारी आदतें इस्तेमाल कर लो, और ये सारी आदतें इस्तेमाल करोगे तो अगर दुनिया 3x 4x 5x स्पीड से चल रही है तो आप भी 3x 4x 5x स्पीड से बढ़ पाओगे। वी टॉट दिस टू पीपल and we also even taught laws of productivity to people. Laws of productivity are very similar to laws of gravity. Gravity कैसे काम करती है? आप 10 माले की बिल्डिंग से कूदो रोहन, तो आप नीचे ही जाओगे। आपको अच्छा लगे या बुरा, सही लगे या गलत, मानो या ना मानो, अग्री करो या डिसअग्री करो, अच्छा लगे या बुरा, श्रद्धा विश्वास हो या ना हो, कोई फर्क पड़ता है क्या शिव योगी? दिस इज हाउ ग्रेविटी अप्लाइज। और 18वीं सदी में भी ग्रेविटी इसी तरह से काम करती थी, और 24वीं सदी में भी ग्रेविटी इसी तरह से काम करेगी। यस और नो? हेलो? यस। आप इतना यस यकीन यस से यस कैसे, आप इतना यकीन से यस कैसे बोल रहे हो? आप कौन सा 18वीं सदी में जिंदा थे, और आप कौन सा 24वीं सदी में जिंदा रहने वाले हो, लेकिन फिर भी आप कॉन्फिडेंट हो कि ग्रेविटी तो इसी तरह से काम करती है? क्यों? मनन, इट इज टाइम यूनि टेस्टेड। ये कॉमन सेंस की बात यूनिवर्स है, कहाँ इधर उधर घूम रहे हो? तो आप लोग कभी ग्रेविटी को क्वेश्चन नहीं करते, और अगर करते हो तो एक काम करो ना, 10 माले की बिल्डिंग से एप्पल फेंक के देख लो किधर जाता है। हेलो? नीचे तो ही अभी जाएगा। हम कभी तो अभिजीत हम कभी ग्रेविटी के साथ हाँ, पंगा नहीं लेते, लेकिन ऑन ए लाइटर नोट एप्पल, ऑन ए लाइटर नोट एप्पल ही फेंकना, खुद हाँ नहीं एग्जैक्टली ट्राई करना जाने का। नहीं, बाकी इंश्योरेंस लेके करना जो भी करना है। एप्पल का फोन भी फेंक सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट डू यू गेट इट? तो यस आप ये लॉज ऑफ ग्रेविटी के साथ कभी पंगा नहीं लेते, पर लॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या है आपको मालूम नहीं। डज इट मीन दे डोंट अप्लाई टू यू? अब बचपन से लेके आज तक किसी ने आपको ये लॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी पढ़ाए नहीं, बताए नहीं, सिखाए नहीं, दिखाए नहीं, तो आप इनको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? हम इफ यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आज मैं आपको कुछ लॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी फ्री में सिखा दूंगा। मैंने एक्चुअली अभी ना लोगों को सिखाने के पैसे लेना बंद कर दिया है, मैं खाली लोगों से इम्प्लीमेंट कराने के पैसे लेता हूँ अभी। ओके, सो बेसिकली नॉलेज दिया, अवेयरनेस दिया, टूल्स दिए, हैबिट्स बताए, लॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी बताए, तो बहुत सारा काम किया। तो आप अगर गूगल पे चले जाओगे, मनन वसा टाइप करोगे, तो करीब करीब 300 350 लोगों ने गूगल रेटिंग दिया है। उसमें 4 स्टार पढ़ना, 5 स्टार बहुत सारे कंटाल जाओगे। या तो लिंक्डइन पे चले जाओ, एंड इफ यू रीड, लोगों ने दुनिया भर के टेस्टिमोनियल्स दिए, ये फर्क पड़ा, वो फर्क पड़ा, वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने ये काम किया 20 की उम्र से चालू किया था। सो आई कवर्ड ऑलमोस्ट अबाउट 13,500 पीपल इन द फर्स्ट 10 years ऑफ माई लाइफ। लेकिन ये 13,500 लोगों को ट्रेन और कोच करने के बाद मेरे को एक चीज समझ में आई। क्या समझ में आया? फर्स्ट, इट इज इजी टू फॉरगेट व्हाट वी लर्न, यस और नो? Yes. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कितने लोग इंजीनियर है या ग्रेजुएट्स है या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है या प्रोफेशनल्स हो? आप मेरे को एक सवाल का जवाब दे दो। 1/cos इक्वल्स? नहीं, गलत जवाब है। हम भूल गए ना, गैस अच्छा था, पर यहाँ पे केबीसी थोड़ी खेल रहे हैं। साइन थीटा। साइन।
अभी जिसको जो याद है सब बोले जा रहा है। हम यही सब रट्टा मार के उल्टी करके पास हुए थे, और आपने किसी को बोला था मेरे को मैथ्स में अच्छे नंबर आए, और कुछ लोग तो फाइनेंशियल प्लानिंग के बिजनेस में घुसे, थिंकिंग आपका मैथ्स बहुत अच्छा है। अभी अभी आपको दिखा दिया कि आपका मैथ्स का क्या हाल है। आप लोग प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट, 8% परपेचुइटी, 12% परपेचुइटी, ये सब कर लेते हो, पर वो बेस तो वही था ना। हेलो। वन Yes. अपॉन कॉस कहने का वाला। मतलब है, तो कहने का मतलब है इट इज इजी टू फॉरगेट व्हाट वी लर्न, यस और नो। दूसरा, यस सर। टफ टू अप्लाई द लर्निंग्स, नो। नई चीजें सीखना बड़ा आसान है, लेकिन नया इंसान बनना बड़ा मुश्किल है। सही या गलत? सही है। सही है। हमारे पास स्मार्टफोन तो आ गए, लेकिन हमारा कम्युनिकेशन अभी भी स्मार्ट नहीं हुआ। एक्चुअली उल्टा ही गया है। सभी लोग मेरे को एडवाइस देते हैं, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, ये करोगे तो फर्क पड़ेगा, वो करोगे तो फर्क पड़ेगा, ये करोगे तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, ये करोगे तो ये हो जाएगा। लेकिन किसको पड़ी है कि आप ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पिक योर फेवरेट टीचर, कोच, कंसल्टेंट, एडवाइजर, मेंटर, गुरु इन स्कूल। कोई भी टीचर, गुरु, कंसल्टेंट, एडवाइजर, मेंटर कभी लाइफ में वापस आके आपको पूछा, अनुज देसाई आपको ये सिखाया था, इसका आपने क्या किया? चलो मुझे बताओ आप कहाँ अटके हो, मैं आपका हाथ पकड़ पकड़ के आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जाता हूँ। पिक योर फेवरेट टीचर। डिड एनीबडी एवर कम बैक एंड आस्क यू? No one. आपके नसीब अच्छे है कि कोई ना कोई बंदा आपको एडवाइस देता है। इसका मतलब है उसको आपकी पड़ी है, उसको आपकी फिक्र है, और आप अच्छे इंसान होंगे तभी तो सामने वाले को मन करता है कि आपको कुछ बोलने का। यस और नो? हम लोग रास्ते चलते आदमी को एडवाइस नहीं देते, पर किसको पड़ी है कि मैं ये करूँ कि ना करूँ, इंक्लूडिंग आवर पेरेंट्स। वो भी बेचारों को बहुत चिंता होती है, तो वो लोग बोलते रहते हैं ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है वो तुम्हारे लिए अच्छा है। लेकिन वो भी बेचारे क्या करे, एडवाइस तो सभी लोग दे रहे हैं, लेकिन किसको पड़ी है मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? हाउ मेनी ऑफ यू आर विथ मी? बाकी के लोगों के कैमरा बंद हो गए। माई पॉइंट इज, आज के बाद एक नए रुपए का नॉलेज, अवेयरनेस, टूल्स, टेक्निक्स कुछ भी नहीं मिला। जितना पता है, जितना दिखता है, जितना आता है, जितना मालूम है, उसका 5-10% अगर ढंग से इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आपका जिंदगी यहाँ से आ जाएगा, आपका प्रोडक्टिविटी यहाँ से आ जाएगा, आप कितने पैसे कमाओगे यहाँ से आ जाएगा। तो आई रेस्ट माई केस। आपका प्रॉब्लम नॉलेज, अवेयरनेस, टूल्स, टेक्निक्स है ही नहीं, तो आपका पंगा कहाँ है? आपका पंगा इज एप्लीकेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। और कोई ट्रेनर, कोच, कंसल्टेंट, एडवाइजर, मेंटर, टीचर, गुरु वापस आके आपको पूछता नहीं है, प्रदीप सिंह रावत मैंने आपको ये सिखाया था, तो आपसे कितना हो पा रहा है, कितना नहीं हो पा रहा है। जो भी नहीं हो पा रहा है, चलो मैं आपका हाथ पकड़ पकड़ के आपको कराता हूँ। यू ऑलरेडी नो व्हाट यू नीड टू डू टू मेक योर लाइफ बेटर। तो मैं आपको और ज्ञान, नॉलेज और अवेयरनेस दे दूँ, अच्छा लगेगा, मजा आएगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन और एग्जीक्यूशन से पड़ता है। इसके लिए मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स लेना बंद कर दिया, और अभी मैं वो लार्ज फॉर्मेट प्रोग्राम्स नहीं करता, मैं 2 दिन के प्रोग्राम्स नहीं करता। आई हैव गॉट माई सेल्फ इन टू डीप हैंड होल्डिंग, implementation, application and execution, and my core competency has become making entrepreneurs produce tangible results in a time bound manner on a very strong foundation of habits, so that the results are sustainable in nature. And that's exactly why Deep asked you people to come and attend today's workshop. If you are still serious about doubling your business, my request to you is please start answering some questions that I'm about to ask you, and please keep your cameras on. Otherwise, यहाँ पे बैठ के कैमरा बंद करके आप सुनोगे, आप क्या सुन रहे हो क्या नहीं सुन रहे हो, हमको पकड़ में नहीं आएगा, हमको समझ में नहीं आएगा if you are getting any benefit or not. And if you have something else to do with your time which is more important, then it's better that you do that, क्योंकि आपका टाइम यहाँ पे खराब हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, आप सीख भी जाओगे, आप बोलोगे भी हाँ ये तो सब मुझे पता है, ये तो सब मुझे मालूम है, मैं जानबूझ के ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें बोलता नहीं हूँ, बट यू विल मिस द होल पॉइंट ऑफ टुडे सेशन कि काम क्यों नहीं निकल रहा है। देयरफॉर आई एम सेइंग प्लीज कीप योर कैमराज ऑन। अब मैंने 6-6.5 महीना सबैटिकल लेके सोचा, ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, ये लोगों में ऐसा क्या है जो मेरे में आ जाएगा, तो मैं भी इनके जितना सक्सेसफुल बन पाऊंगा अगर मेरी इच्छा हो तो। मैं नहीं बोलता मोदी बनो, पर अगर आपको मोदी बनना है, तो मोदी में ऐसा क्या है जो मेरे में आ गया, तो मैं भी उसके जितना सक्सेसफुल बन सकता हूं अगर मेरी इच्छा हो तो।
आपका दुनिया में किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, बट इवन इफ यू वांट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ मुकुंद, तो कौन सी चीजें मिसिंग है? अगर वो आ गई कुमार संतोष, तो मैं भी उतना सक्सेसफुल बन सकता हूँ जितनी मेरी, और कोई मुझे नहीं रोकेगा। मैंने 6.5 महीना लिया था ये सवाल खुद को पूछने का, आप 60 सेकेंड तो ले ही सकते हो। कैन यू प्लीज आंसर? Presentation and public. Presentation. Okay. What else? You can even type your answers in the chat box if you want. ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें ऐसा क्या है जो मेरे में आ गया, तो मैं भी उनके जितना सक्सेसफुल बन सकता हूँ। सो उल्लास इज सेइंग डेडिकेशन एंड डिवोशन. First, What else? first is discipline. 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 Very good. What else? What else? Fire in the belly. Sorry? Fire in the belly. सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है सर, आप टाइप करोगे प्लीज? पर्पस. वेरी गुड. हार्ड वर्क. वेरी गुड. डिसिप्लिन. Habits. विच हैबिट सर? कौन सी आदत है, वही पूछ रहा हूँ. What else? जो सफल होने के Focus. लिए आदत चाहिए, जो हम लोग करना चाहते हैं मन से लेकिन करते नहीं, आलस बस, Okay. वो आदत करने की जरूरत होती. Okay. What else? Focus. Focus. पैशन Passion. होना चाहिए. Leadership. पूरा गोल्ड discipline. पहना है, Very गोल्ड good. ही गोल्ड. अब ये लोगों से एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन लियोनाइडस. हमसे क्यों नहीं होता? फायर इन द बेली इज कॉल्ड एसिडिटी. Public speaking to convince people, they are very good orators. Very good. What else? Strong will, commitment. Self conviction. Leadership, self conviction. सभी के कुछ करने, ओनली खुद के लिए नहीं करना है. हाँ, सबके लिए कुछ करो, खुद के लिए नहीं करना है. ओके. What else? Would you like me to decode the secret of how to be the most successful version of yourself? Yes. Yes. गोल होना चाहिए. ओके, सो लेट मी डिकोड द सीक्रेट ऑफ हाउ टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल वर्जन ऑफ योरसेल्फ. रेडी? और आप लोग अपनी शक्लें देखना, या तो जूम पे जितने भी लोगों की शक्ल दिख रही है ना, उनको देखना जब मैं पढ़ता हूं तो क्या होता है और आपको बाद में क्या एहसास होता है. आर यू रेडी फॉर मी टू डिकोड द सीक्रेट ऑफ हाउ टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल वर्जन ऑफ योरसेल्फ? रेडी? Yes. So let's decode the secret. Okay, 3, 2, 1. There you go. Successful people are committed, focused, willpower, disciplined, dedicated, determined, hardworking, good planner, strong, decisive, courageous, time management, healthy and fit, collaboration, hungry, powerful, risk takers, clarity of thoughts, reputation, great people skills, growth oriented, good industry connects, good communicators, must be at the right business at the right time, good family background, visionary, great salespeople, intent, ready for change, self-belief, motivated, bold, believer in God, lucky, good reader, convincing ability, knowledgeable, kind, generous, compassionate. यस, आ गया सब कुछ जो आप बोल रहे थे. हेलो, आ गया सब कुछ जो आप बोल रहे थे? Yes. आ गया Yes. वो सारी Yes. चीजें भी जो आप उससे भी बोलना ज्यादा. चाहते थे लेकिन आपको शब्द नहीं मिले. कुछ रह गया तो मैंने एटसेट्रा लिखा ही है ना. Now I have decoded the secret of how to be the most successful version of yourself, and you all look at your faces. Instead of being inspired and crazy, देखो, I have stopped doing motivation in life, क्योंकि वो लोगों को मोटिवेट करो ना तो 3-4 दिन के बाद सब निकल जाता है. तो मैं भी बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूँ, स्टेज पे कमेंट ये सब बोलूंगा और आपके अंदर पागल जैसी एनर्जी भर दूंगा. वो 2-3 दिन चलेगी और चौथे दिन तो यही शक्ल लेके आप घूमने वाले हो. हेलो, जिनका कैमरा बंद है उनकी तो बात ही नहीं कर पाएंगे हम लोग. हेलो, how many of you getting what I'm saying? Yes, Deep, are you getting, sir. getting? Yes. Yes. Definitely, sir. Yes. So मैंने आपको सीक्रेट दे दिया डिकोड करके, हाउ टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल वर्जन, लेकिन आप कुछ खास खुश नहीं लग रहे हो. ऐसा क्यों?
हेलो हेलो Following is very difficult. कोई जवाब देगा? कैन यू ऑल हियर मी? Because Following so is many hello. because so many things are missing from our side. इतनी सारी है। अरे आप, मैं तो बोल रहा हूँ सर कोई भी दो ले लो ना। आप इंकी बिंकी बोंकी करके कोई भी दो ले लो। कोई भी दो ले लोगे तो भी आपका टर्नओवर तो डबल हो जाएगा। ट्राई कर लो। हेलो Yes, sir. Yes, sir. वैसे आप लोगों ने चैट बॉक्स में तो ही लिखी है, ज्यादा लिखी नहीं है। हेलो डिसीजन मेकिंग हाँ सर, वो एक चीज भी आ गई तो भी मेरा काम हो जाएगा। सर बुक में लिखी हुई चीजें तो बहुत कुछ होती है, पर उसको समझाने वाला कोच यदि प्रॉपर हो तो ही उसका वर्थ है, वरना तो वो तो बुक में ही लिखा रह जाएगा। अरे सर, मेरे माँ बाप ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है, फिर भी मेरे ऊपर कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। मेरे टीचर लोगों ने भी मेरे ऊपर बहुत हाथ आजमाए थे, लेकिन मैं वैसा ही था। आई टेल यू व्हाई यू आर नॉट हैप्पी लुकिंग एट दिस स्लाइड। ये सारी आदतों को मास्टर करने में बहुत टाइम लगेगा, एक जन्म जाएगा, लेकिन मुझे सक्सेस कब चाहिए? Voice is breaking. एक मिनट ना, मैं मेरा नेटवर्क Network चेंज करता हूँ। आई थिंक इंटरनेट का प्रॉब्लम है। जस्ट गिव मी प्लीज। या 1 minute, आई एम जस्ट चेंजिंग माय इंटरनेट। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो यस सर यस आ रही है अरे सर यस सर मेरी आ रही आवाज है। Yes, अभी sir. बेटर? अभी बेटर है? यस सर आ रही है आवाज। ओके, कैन यू ऑल प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास प्लीज? On है sir, on. On है। पता नहीं, मेरे स्क्रीन नहीं रहे। मेरे स्क्रीन पे सारे लोगों के कैमरा दिख नहीं रहे। मेरा वाला तो आना, बाकी को पता नहीं। ओके, एनीवेज, सो डू यू रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग कि ये सारी आदतों को मास्टर करने में बहुत टाइम जाएगा, लेकिन मेरे को तो बराबर। सक्सेस अभी चाहिए। यस और नो? आई वांट यस सक्सेस सर यस्टरडे। Yes, और yes, क्योंकि yes. मेरे पास टाइम यस नहीं है, सर और क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, ये सक्सेस मेरे लिए नहीं है। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? फर्स्ट प्लेस वेयर यू आर स्टक इज व्हाट? कि सर ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, धंधा बढ़ाने के लिए सेल्स लगेगा, सेल्स बढ़ाने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा एफर्ट लगेंगे, और सर वो तो मेरे पास जितना था वो मैंने डाल दिया। अब सर उसके ऊपर आप बोलोगे टाइम डालो तो सर नहीं हो पाएगा, पैसा डालो बोलो तो नहीं हो पाएगा। And that's where you got stuck. And I told you that the answer is to increase productivity. And the second place where you are stuck is this, कि ये सारी आदतों को मास्टर करने के लिए बहुत टाइम जाएगा, लेकिन आपको तो सक्सेस कब चाहिए? यस्टरडे। अब आपके पास तो टाइम है नहीं, तो फिर प्रोडक्टिविटी आपके लिए नहीं है। कैन यू ऑल सी माई स्क्रीन? Yeah. यस सर I am only not able to see my screen. Why? यस सर Yeah, now I can see. Just 1 second. Now I am not able to see people on Zoom. एक ही मिनट ना, मैं खाली एडजस्ट कर लूँ। ये किसी का कैमरा, किसी के पीछे बातें चल रही है। कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज? Yeah. ओके 1 मिनट। हाँ, मैं स्क्रीन एडजस्ट कर रहा हूँ। मेरे को या तो स्क्रीन दिखती है या तो आप लोग दिख रहे हो। Can I make mute everyone? Manan? नॉट नीडेड। खाली एक ही बंदा था तो वो आई थिंक Okay. वो उन्होंने कर दिया। ओके या have you got this? So this is the second place where you're stuck. Now what's the answer to this? What if I आपका told you, screen नहीं है मनन proper. okay, what if I tell you कि आपको खाली 4 चीजें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, और ये 4 चीजें आप इंप्लीमेंट करोगे ना, then all the words that अभी you are ठीक है. seeing on the slide, they will automatically get implemented on their own. चलेगा? यस सर आप सब लोग फाइनेंशियल प्लानिंग इंडस्ट्री से हो, तो Yes, आप चलेगा। लोग सब लोग कुछ ना कुछ गोल्स या टारगेट तो लेते ही होंगे। सो हम लोग एक बहुत Yes. छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। whoever is really serious about making money, please do this exercise. क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करोगे ना, तो बैलेंस जो 1-1.5 घंटा है ना, आपको लगेगा मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और पर्सनली बात कर। मैडम ओके, सो द एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल। आपको आने वाले 7 दिन में कितने पैसे कमाने हैं,
या तो अगर आपके कुछ पैसे अटके हुए हैं जो आपको रिकवर करने हैं, तो आपको कितने पैसे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मनन भाई एक बहुत बड़ा क्लाइंट है, वो मेरे साथ साइन अप करने वाला था और अभी तो मार्केट भी नीचे है, तो उसने प्रॉमिस किया था कि वो मेरे को 5 लाख रुपए का एसआईपी देगा। तो मनन भाई ये हफ्ते में मैं अगर वो क्लाइंट से 5 लाख रुपए का मैंने एसआईपी चालू कर दिया ना, तो मनन भाई आपको मैंने सुना, मैंने जो समझा, मैंने जो सीखा वो मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया ना, तो मेरे को सीधा सीधा उसका फायदा हो गया। कैन ऑल ऑफ यू टेक अप वन सिंपल गोल लाइक दिस, और वो गोल लेने के बाद मुझे चाहिए कि आप स्टेप्स लिखो, ये गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्शन लेने पड़ेंगे। तो मैं उसको मिलने जाऊंगा, मैं उसको पिच करूंगा, मैं उसके ऑब्जेक्शन समझूंगा, वो ऑब्जेक्शंस का मैं आंसर दूंगा, फिर मैं उसको बोलूंगा सर चेक रेडी है, तो फिर मैं उसका चेक लूंगा, मैं फॉर्म भरूंगा और मैं उसका एसआईपी शुरू कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो। So what you do is take up one and only one most important goal that you want to achieve in the next 7 days. इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल, जरूरी आपके लिए बिजनेस में कुछ भी नहीं हो सकता है। ये एक काम हो गया आने वाले 7 दिन में, और दूसरा और कुछ भी काम नहीं हुआ ना, तो मुझे लगेगा कि सेशन तो चलो फ्री था, लेकिन मैंने जो टाइम डाला ना, तो वो टाइम का मेरे को बहुत वैल्यू मिला, मेरे को उसमें बहुत फर्क पड़ा। और कहीं ना कहीं मैं दीप को थैंक यू बोलूंगा कि दीप की वजह से मेरे को ये ज्ञान मिला और मैंने इसका इस्तेमाल किया तो मेरी लाइफ सुधर गई। हैव यू गॉट इट? मैं आप सब लोगों को 2-3 मिनट देता हूँ, एक नोटपैड लो, एक गोल लिखो जो 7 दिन में पूरा करना है, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में एक ही गोल लेना है, उसके ऊपर कुछ नहीं, और उसके स्टेप्स लिखो कि वो करने के लिए क्या क्या एक्शन लेने पड़ेंगे। जस्ट डू दिस एक्सरसाइज एंड वी विल रिज्यूम अगेन आफ्टर 2 मिनट्स। ओके, प्लीज गो हेड। ये आप करो और फिर हम लोग 2 मिनट के बाद वापस शुरू करते हैं। ओके, नाउ हाउ कॉन्फिडेंट आर यू कि आपने जो लिखा है वो आप करोगे तो आपका काम हो जाएगा 50%, 80%, 100%? कैन यू प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स हाउ कॉन्फिडेंट आर यू कि आपने जो लिखा अगर वो हो गया तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 50%, 80%, 100%? कैन यू प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स? ओके, 75%। रेस्ट ऑफ यू, बाकी के लोग प्लीज आंसर लिखो। 50%, ओके ओके। 1 person is saying 100%. Most of you are saying 50, 60, 80%, 70%, 60%. ओके, एक बात बोलूँ आपको, लाइफ में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि आपने किसी कोरे कागज पे लिखा कि मैं ये करूँगा और वो नहीं हुआ। यस और नो? ऐसा तो लाइफ में पहले कितनी बार हुआ है कि मैंने बोला मैं ये करूँगा और वो नहीं हुआ। तो ये हफ्ता ऐसा क्या नया होगा, क्या अलग होगा जिसकी वजह से आप जो भी बोल रहे हो? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जब टाइम आता है ना काम करने को, तो हमारे साथ कुछ कुछ होता है, उसके बाद में बहुत कुछ होता है, और हम जो सोचते हैं ना वो नहीं होता है। यस और नो? लेट्स से आपकी ऑफिस में एक बंदा है, हम उसको मिस्टर एक्स बोलेंगे। तो आपने मिस्टर एक्स को बोला कल शाम को 6 बजे तक मुझे ये काम करके देना। तो मिस्टर एक्स अभिजीत क्या बोलता है? हो जाएगा। फिर अभिजीत मिस्टर एक्स के पास जाते हैं और मिस्टर एक्स को पूछते हैं मेरा काम हुआ क्या? तो अभिजीत मिस्टर एक्स क्या बोलते हैं? नहीं हुआ। यस और नो? फिर आप मिस्टर एक्स को पूछते हो काम क्यों नहीं हुआ? तो ही कम्स अप विथ
रीजंस, एक्सक्यूजेस, रैशनलाइजेशन, जस्टिफिकेशन, इंटरनल कंडीशंस, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं हुआ। यस और नो? आपको मालूम है आपका लाइफ में एक और Yes. मिस्टर एक्स है। वो Yes, मिस्टर sir. वो मिस्टर एक्स का नाम चैट बॉक्स में लिखोगे प्लीज? वो मिस्टर एक्स का नाम चैट बॉक्स में लिखो ना प्लीज। नहीं, उसका नाम माइंड नहीं है, उसका नाम रोहन है, उसका नाम भरत है, उसका नाम संदीप है, उसका नाम किरण है, उसका नाम मनन है, उसका नाम राजेश मौर्य है, उसका नाम दीप गजबे है, उसका नाम किरण है। हम भी तो कितने सारे वादे खुद को करते हैं कि आने वाले संडे के पहले हम ये कर लेंगे और वो नहीं होता है। यस और नो? और फिर कोई हमको पूछेगा क्यों नहीं हुआ, तो वी विल कम अप विद रीजंस, एक्सक्यूजेस, रैशनलाइजेशन, जस्टिफिकेशन, इंटरनल प्रॉब्लम, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस जिसकी वजह से नहीं हुआ। यस और नो? नाउ आपके कुछ रीजंस जो होते हैं ना बड़े सात्विक होते हैं, आपके कुछ रीजंस लॉजिकल होते हैं, आपके कुछ रीजंस प्रैक्टिकल होते हैं, आपके कुछ रीजंस रिलीजियस होते हैं, आपके कुछ रीजंस पॉलिटिकल होते हैं, आपके कुछ रीजंस स्पिरिचुअल होते हैं, आपके कुछ रीजंस इंटेलिजेंट होते हैं, आपके कुछ रीजंस इंटेलेक्चुअल होते हैं। आप भी दुनिया भर के अलग अलग तरह के रीजन देते हो। इसको फर्क पड़ता है कि आपका क्वालिटी ऑफ रीजन कैसा है। जब टाइम आता है ना रिजल्ट प्रोड्यूस करने का, तब वो पल में या तो इंसान रिजल्ट प्रोड्यूस करता है या तो इंसान रीजन देता है। तो अगर आप सच्ची सीरियस हो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तो कल संडे है, आप एक काम करो, आप दुनिया भर के रीजन लिख दो जो आपने दूसरों को दिए, दूसरों ने आपको दिए या आपने खुद को दिए। आप ये सारे रीजन एक कागज पे लिख दो और ध्यान से देखोगे ना, तो आने वाले 4 स्लाइड पे मैं आपको कुछ लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। अगर आप ये 4 लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी को आपकी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट कर लेते हो तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। बाकी सब बातें इन सिंपल वर्ड्स, आने वाले 4 स्लाइड्स पे कुछ पॉइंट्स है। अगर वो पॉइंट्स को आप लोग उससे बच गए, ये हफ्ता आपने प्लान बनाया इनको अवॉइड कैसे करना है, इनमें फंसना कैसे नहीं है, तो आपने जो रिजल्ट लिखा है ना वो हो जाएगा। और अगर आने वाले 4 स्लाइड पे एक भी पॉइंट पे आप फंस गए ना, तो आप लाख कोशिश कर लो, आप दुनिया भर की मेहनत कर लो, आपका रिजल्ट होने वाला नहीं है। अगर तुक्के से हो भी गया आपका रिजल्ट, आप अगले हफ्ते रीअटेम्प्ट करोगे तो आप वापस पक्का फंस जाओगे। बिकॉज दिस इज द बेसिक्स ऑफ हाउ रिजल्ट्स गॉट डन बाय एनीबडी ऑन द प्लैनेट। 18वीं सदी में भी इसी तरह से रिजल्ट प्रोड्यूस होते थे और 24वीं सदी में भी इसी तरह से रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। जब टाइम होता है काम करने का, 4 फंडामेंटल लॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी, टाइम, फोकस, क्लैरिटी एंड रियलिटी नीड टू बी प्रेजेंट। ये 4 में से एक या 2 या 3 या चारों के चारों मिसिंग होंगे with regards to any action, तो वो रिजल्ट नहीं होगा। इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन somebody else और वो बंदे के पास टाइम, फोकस, क्लैरिटी, रियलिटी नहीं है, तो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। बाकी सब बातें ही है। हैव यू गॉट दिस? हाउ डज लैक ऑफ टाइम शो अप फॉर अस इन आवर लाइफ? वी स्टार्ट लेट, होता है कि नहीं? मैं कल सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंच के ये काम करूंगा और मैं ऑफिस पहुंचता हूँ 11 बजे। फिर मेरा 10 बजे वाला काम कब होता है? 12 बजे, क्योंकि ऑफिस में लोग मुझे दुनिया भर के सवाल पूछते हैं, तो मैं मेरा काम तो 12 बजे के पहले चालू ही नहीं कर सकता हूँ। अब मेरा 11 बजे वाला काम 2 बजे होगा, मेरा 2 बजे वाला काम 5 बजे होगा, मेरा 3 बजे वाला काम 8 बजे होगा। अब मेरा 4 बजे वाला काम कब होगा? कल। और मेरा कल कैसे जाएगा? जैसे मेरा आज गया। कितने लोगों के साथ ये हो चुका है आज के पहले? प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। कितने लोग मेरे को स्टैम्प पेपर पे लिख के देते हो, मनन मेरा घर तेरा हो जाएगा, पर आज के बाद ये कभी नहीं होगा मेरी लाइफ में, मैं 10 बोलूंगा तो 10 बजे हो जाएगा। प्लीज ऐसा कोई स्टैम्प पेपर साइन करके देना मत, बाकी आपका घर मेरा हो जाएगा। दुनिया में यही सब जगह चल रहा है। आपका इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एटीट्यूड बहुत अच्छा है, बट लॉ ऑफ टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस हैपेंस टू द बेस्ट ऑफ अस, यस और नो? नाउ रोहित ने कुछ काम अपने आदमी को डेलीगेट करके रखा है। अगर वो बंदे ने काम लेट चालू किया तो वो चक्कर में भी देयर कैन बी सम कॉन्सिक्वेंस जिसकी वजह से काम नहीं होगा। बाकी सब बातें, यस और नो? सेकेंड वन इज Yes. इनएक्यूरेट टाइम एस्टिमेट। सर 15 मिनट दे दो, 15 मिनट में मैं आपको कोटेशन भेजता हूँ, और फिर कोटेशन भेजने के लिए हमारे 3, 4, 5 दिन निकल जाते हैं।
हमारे 2-3-4 घंटे निकल जाते हैं। डज दिस नॉट हैपन टू द बेस्ट ऑफ अस? तो मैंने सोचा था ये काम 15 मिनट में होगा। जब मैं करने जाता हूँ वैभव, तो मुझे रियलाइज होता है 15 मिनट का काम नहीं है, ये तो 2 घंटे का काम है। आपको 2 घंटा लग गया और इस चक्कर में कोई ना कोई काम छूट गया और आपका रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ और आप कहीं ना कहीं अटक गए। डज दिस नॉट हैपन टू द बेस्ट ऑफ अस? एक लॉ ऑफ प्रोडक्टिविटी आपको मैं फ्री में सिखाता हूँ। एक 500 ml पानी के बॉटल में मैक्सिमम आप कितना पानी डाल सकते हो? एक खाली 500 ml पानी के बॉटल में आप कितना मैक्सिमम पानी डाल सकते हो? जवाब मिलेगा 500 ml. 500 ml। 500 ml। 500 ml पानी के बॉटल में अगर आप 2 लीटर पानी डालोगे तो क्या होगा? बह जाएगा ऊपर. ओवरफ्लो हो जाएगा। यस और नो? जितेंद्र सर, आपका नजर किधर जाएगा? भीमराज, आपकी नजर किधर जाएगी? गिरे हुए पानी पे। यस और नो? मुबारक हो, ये आपका रोज का है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये रह गया, वो रह गया, ये बाकी है, वो बाकी है। और बसवराज, आप कितना भी काम करो, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, कुछ ना कुछ तो कम ही पड़ता है। और फिर अगले हफ्ते यही चीज वापस होती है। हेलो, कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अच्छा, Yes, sir. एक बात बताओ, यस सर। सोमवार सुबह को आप क्या काम करोगे? आप कैसे नक्की करते हो? What work you will get done on Monday morning? How do you decide? आप लोग कुछ ऑर्गेनाइजर, कैलेंडर, डायरी, चेकलिस्ट, टू डू लिस्ट ऐसा कुछ बनाते हो? यस और नो? कुछ लोग बड़े क्लियर है, Yes. हमको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है मनन भाई, हम जहाँ खड़े होते हैं काम वहीं से चालू हो जाता है। हमको कुछ ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग का जरूरत नहीं है। हमारे पास इतना काम होता है कि हम 4 बजे खाना खाते हैं। यस और नो? तो आप लोग ऑर्गेनाइजर, कैलेंडर, डायरी, चेकलिस्ट, टू डू लिस्ट, आप जो भी इस्तेमाल करते हो, मेरा आपको सवाल है, टिपिकली आप दिन में कितने काम लिखते हो? 8-10 काम लिखते हो? और दिन के एंड में कितने काम खत्म होते हैं विजय जी? ये 8-10 काम जो लिखे आपने, विलासी, निखिल, इसमें से आपके कितने काम खत्म होते हैं? जरा चैट बॉक्स में डालोगे? अगर जवाब दोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। 10 में से 2 होते हैं, 10 में से 1 होता है, 50-60% होता है, 2-3 काम होते हैं, 40-50-60% होता है, 50% बोल रहे हैं, एवरेज लोगों का 50% आ रहा है। ये सब 50-60% होता है. हाँ, 50 से 60% होता है। यस और नो? अब मेरे को आपको एक सवाल पूछने का है, आपकी ये आदत कितने साल पुरानी है? सर, हम ट्राई तो करते हैं सब काम कंप्लीट करने की, लेकिन होते नहीं है ना। मेरे को जवाब दो ना, ये कितने साल पुरानी आदत है? वेरी ओल्ड भी नहीं चलेगा, हाउ ओल्ड? जब से काम शुरू किया है तब से ही है आदत है। आफ्टर स्कूल नहीं, इन स्कूल है रोहन। आपने काम से शुरू नहीं किया, नहीं, आप 10 साल के थे ना, तब से आपको टू डू लिस्ट बनाने का आदत है। तो अगर आपकी उम्र 50 है तो ये 40 साल पुरानी आदत है। अगर आपकी उम्र 35 है तो ये 25 साल पुरानी आदत है। हेलो, Yes. आपके साथ ऐसा अजीब इत्तेफाक कैसे हो सकता राइट। है कि कोई भी उम्र में, कोई भी दिन ले लो, मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ और रोज रात को आके पूछोगे ना तक क्या हुआ, तो मैं बोलूंगा 10 में से 2, 10 में से 1, 10 में से 3, 10 में से 5, 10 में से 6, ऐसा ही स्कोर होता होगा। और रोज रात को मुझे पूछेगा ना क्यों नहीं हुआ, तो मैं कोई ना कोई रीजंस दूंगा। यस और नो? ऐसा Yes, कैसे sir. हो सकता है कि कोई भी उम्र हो, कुछ भी काम लिखा हो, आपका एवरेज 10 में से 5, 10 में से 2 कभी खराब नहीं होता? एक और बात बताऊं, मेडिकल साइंस इतना तेज हो गया है कि आप लोग कम से कम 80 साल तक तो जियोगे ही। मतलब आप और 30-40 साल तो काम करने वाले हो। यस और नो? कुछ ना कुछ तो करोगे ना, सांस तो लोगे तो कुछ करोगे ही ना। तो आने वाले 30-40 साल भी आप लोग हर दिन कुछ ना कुछ लिखने वाले हो। और मुझे और आपको दोनों को एडवांस में मालूम है, भविष्य में भी मेरा एवरेज 10 में से 5 ही निकलने वाला है। हेलो, मतलब बड़े बड़े राइट। ब्रांड का साल में 2 सेल्स आता है, पर मनन, मेरा जबान तो परमानेंटली 50% डिस्काउंट पे ही चलता है। आप कभी भी आओ 50% डिस्काउंट, मतलब संदीप जैन अगर बोलेंगे मैं अगले हफ्ते 5 लाख रुपया कमाने वाला हूँ, तो मेरे को और संदीप को सीक्रेटली 2-2.5 लाख के ऊपर करने वाला नहीं है। हेलो, हमको Yes, sir. जिंदगी में कभी 50% के ऊपर आते नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों को 90%, 100% आना चाहिए, बरोबर ना? तो इस नाते तो वी आर बैड इन्फ्लुएंस ऑन आवर चिल्ड्रन, और हमको हमारे बच्चों को पढ़ाना बंद कर देना चाहिए,
क्योंकि हमको तो लाइफ में कभी 50 टका के ऊपर आते नहीं, लेकिन हम उसके पीछे पड़े रहते हैं। हेलो। राइट राइट, Yes, sir. पर मेरे को बताओ, आपके साथ ऐसा एब्सोल्युटली। अजीब इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि कोई भी उम्र हो, कोई भी दोनों, कोई भी पन्ना ले लो, कुछ भी कमिटमेंट ले लो, मेरा 10 में से 5 ही आता है। मेरा रिकॉर्ड तो वही है। ऐसा क्यों? ऐसा अगर इसलिए है कि अब हम भी उस चीज को लेके कंफर्टेबल फील करने लग पड़े हैं। ओके, व्हाट एल्स? क्या आपको ये अब चीज का एहसास है कि आप कल सुबह वापस 10 चीजें लिखोगे और कल शाम को वापस 10 में से 2 3 5 ही करोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो 10 लिखेंगे तो 8 9 तो ट्राई करेंगे कि 8 9 तक चला ट्राई जाए। तो आज भी करता हूँ 10 का 10 करने की, लेकिन होते नहीं है ना। नहीं, मतलब इमीडिएटली 5 से 10 तो होगा नहीं ना। तो स्लोली स्लोली अगर हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है, 10 नहीं भी हो रहा, कहने को तो 10 बोल दूंगा मैं, पर सर, लेकिन चलो इसके आज लिए जिंदगी के 8 हो रहा है, 50 9 हो साल रहा का, है, तो 2 3 दिन इतनी में इतनी छोटी सी बात मैं 40 साल से तो समझ नहीं रहा हूँ ना। आप ऐसा। लोग म्यूचुअल फंड बेचते हो, यस और नो? तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न तो दिख रहा है ना। तो म्यूचुअल फंड का तो एक भी दिन रिटर्न 100% नहीं है ना, हो भी नहीं सकता है ना। आपका भी वही हाल है ना, एविडेंस देखोगे तो समझ में नहीं आ रहा है। पर ऐसा बराबर है। मेरे साथ कैसे हो सकता है कि मैं रोज 10 लिखूं और मेरा 5 ही होगा? आपकी नियत तो पूरी 10 करने की है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन खाली नियत से बात बनती तो हम सब के सब करोड़पति हो जाते। हेलो। यस, बराबर है। तो ऐसा अजीब इत्तेफाक कैसे हो सकता है आपके साथ कि कुछ भी लिखो 10 में से 5 ही है? जवाब? भविष्य और आपका डेंजरस है, क्योंकि आप भविष्य में भी जो बोलने वाले हो उधर भी 10 में से 5 ही करने वाले हो आप। ये आपका पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड है। आपको अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या करूं? सही देखो, बात आईने है। में शक्ल अच्छी ना लगे ना तो आईना तोड़ा नहीं जाता, मुंह धोया जाता है। सही बात। जवाब दो, ऐसा अजीब इत्तेफाक कैसे? प्रवीण जी, हम लोग हमारा पोटेंशियल इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते। सर इसका भी डी कोड आप ही दे दो अभी। हाँ, अभी आप ही दे दो। बचपन से लेके आज तक किसी ने हमको टाइम के साथ रिश्ता बनाना सिखाया ही नहीं है। बराबर है। आप लोग ये 1965 की आदत को लेके बैठे हो, जिसको हम लोग टू डू लिस्ट बोलते हैं या चेकलिस्ट बोलते हैं। ये टू डू लिस्ट 1965 में चलता था, 2025 में नहीं चलता है। कोई भी बंदा सोच ही नहीं रहा है मैंने 10 काम लिखे, पहले काम को करने के लिए 2 घंटा लगेगा, दूसरे काम को करने के लिए 15 मिनट लगेगा, तीसरे काम को करने के लिए 40 मिनट लगेगा, चौथा काम को करने के लिए 20 मिनट लगेगा, पांचवे काम को करने के लिए 15 मिनट लगेगा, छठे काम को करने के लिए 5 मिनट लगेगा। आपने कभी टोटल मारा है? आपने जो भी काम लिखे है उसका टोटल मारोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपने वहां पे 14 घंटे का काम लिखा है। लेकिन आप काम करते हो सुबह 10 से शाम को 7। सो 10 से 7 तो 9 घंटे का दिन हुआ। तो 9 घंटे के दिन में 14 घंटे का काम कैसे करोगे? हेलो। थियोरेटिकली 10 से 7 9 घंटे होते हैं। 9 घंटे में मैं थियोरेटिकली 9 घंटे का काम कर सकता हूँ। प्रैक्टिकली तो मैं 9 घंटे के दिन में मैं 6 7 घंटे के ऊपर काम नहीं कर सकता हूँ, यस और नो? तो मैं तो राइट। 14 घंटे का काम लिख रहा हूँ, तो वो काम कैसे होगा? सो यू कॉम्पेंसेट बाय वर्किंग लॉन्गर एंड हार्डर इन होप कि आपका कल सुधरेगा। किसी का सुधरा क्या? और फिर आप बोलते हो लाइफ में स्ट्रेस है, और आपका वर्क लाइफ बैलेंस तो बिगड़ ही गया ना। तो आपको आदत पड़ी हुई है 500 ml पानी के बोतल में 2 लीटर डालने की, और आपको समझ में नहीं आ रहा है 500 ml में 500 ml ही जा सकते हैं। हेलो। राइट, बराबर है। वेरी A ट्रू। lot of your dreams, desires, ambitions, passions, goals and hobbies have not been fulfilled already because आपने उनके पीछे कभी टाइम डाला ही नहीं। आपने बात की, आपने इच्छा प्रकट की, लेकिन आपने टाइम तो डाला ही नहीं। बराबर है। तो वो काम तो हुए ही नहीं है।
भविष्य में भी अगर आप टाइम नहीं डालोगे ना तो आपके सपने सपने के रूप में ही जिंदा रहेंगे, वो हकीकत तो नहीं बनेंगे। इसमें अच्छा बुरा सही गलत राइट रॉन्ग गुड बैड क्या है? अच्छा, एक तो मनन, मुझे आदत है 500 ml पानी की बोतल में 200 लीटर 500 ml में 2 लीटर डालने की। उसके ऊपर से मनन मैं मेरी बोतल का ढक्कन खुला छोड़ देता हूँ। तो फिर मेरे आजू बाजू लोग होते हैं वो मुझे काम दे देते हैं। कोई ना कोई आ जाता है, पूछने लगता है सर इसका क्या करने का, सर उसका क्या करने का। तो उसमें भी आपका टाइम जाता है, यस और नो। तो आपकी 500 ml पानी की बोतल में 200 ml तो लोग ही रोज डाल के चले जाते हैं। तो आपका तो 300 ही होगा। हेलो। सही। सही है तो सर, सही। अच्छा क्या, इसमें बुरा क्या, इसमें सही क्या, इसमें गलत क्या? हेलो, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? A lot of my dreams, जी desires, सर, ambitions, goals and hobbies राइट राइट। remain unfulfilled in the future also if I don't really invest time. Time is the primary condition in which any work gets done. Time is not the only condition, but it is the necessary condition. और जब तक मैंने वो चीज को करने के लिए टाइम ही नहीं डाला, वो चीज अपने आप तो कभी होती ही नहीं है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? So when will you alter your relationship with time? कुछ लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक साथ 3 काम कर रहे हैं, इधर बात भी कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ कर भी रहे हैं, कैमरा भी बंद है, भगवान जाने ये लोग क्या कर रहे हैं। हेलो। How many of you getting what I'm saying? So when do you intend to alter your relationship with time? एक मोटिवेशनल नाउ तो बोलो। फिर मेरा काउंटर क्वेश्चन है, हाउ? अगर मालूम होता तो आप कर लेते सर, पर आप करोगे कैसे? You need a system, you need a process, you need a structure outside of your mind who can keep telling you what to do, what not to do, so that you develop some relationship with time. Got it? पहला है लैक ऑफ टाइम, दूसरा है लैक ऑफ फोकस। हैव यू रियलाइज जैसे ही आप काम करने बैठते हो ना, यू गेट इंटरप्टेड बाय समबडी और समथिंग दैट यू डोंट लाइक। हाँ या ना? अब ये जितने भी लोग कैमरा बंद है ना, गेस व्हाट इज गोइंग ऑन, दे आर इंटरप्टेड बाय समबडी और समथिंग दैट दे डोंट लाइक। एंड इफ नोबडी इज इंटरप्टिंग मी, देन उनका खुजली कुछ कम नहीं है, दे आर ओनली डिस्ट्रैक्टिंग देमसेल्व्स बाय समबडी और समथिंग दैट दे लाइक। तो बोलते हैं आप चालू रखो ना, हमको जो करना है हम करेंगे, हमको जो सुनना है हम सुनेंगे। हमने वैसे भी ऐसे बहुत सारे प्रवचन पीछे सुने। तो एक और आ गया, अच्छा था, रिफ्रेशिंग था, एंटरटेनर था। हाँ वो अच्छा बोला, वो टाइम फोकस क्लैरिटी रियलिटी के बारे में कुछ बोला ना, अच्छा लगा। दैट्स इट। डोंट वी गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय समबडी और समथिंग दैट वी लाइक, यस और नो? अब मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी और आपको बोला था एक गोल लिखो और वो गोल को अचीव करने के लिए एक्शंस लिखो। अब पहला वाला एक्शन कब लोगे? 4 ऑप्शन देता हूँ। पहला वाला एक्शन कब लोगे? मनन आपके वर्कशॉप के बाद तुरंत। सम ऑफ यू विल से टुमारो फर्स्ट हाफ, सम ऑफ यू विल राइज कल मंडे, कल तो नहीं हो पाएगा, सॉरी कल संडे, कल तो नहीं हो पाएगा। अभी मैं मंडे को करेगा फर्स्ट हाफ में, ये ऑप्शन सी है। और ऑप्शन डी है मंडे सेकेंड हाफ। जरा चैट बॉक्स में टाइप करो ना, पहला वाला एक्शन जो आपने लिखा है वो कब करोगे? राइट नाउ। राइट नाउ तो मेरे साथ हो, कहाँ से करोगे? हेलो, एक्शन लिखो, कब करोगे? सेशन के बाद। आफ्टर द वर्कशॉप, फर्स्ट ऑप्शन, कल, टुडे, व्हाटएवर। ओके, एक बात बोलूं, सही जवाब है, आप भूल जाओगे। अरे सर गोल डिफाइन तो हो गया ना, अभी उसके ऊपर काम भी तो करना है ना रोहन। द राइट आंसर इज आप भूल जाओगे, क्योंकि आप में से किसी ने भी कैलेंडर में रिमाइंडर तो लगाया ही नहीं कि मुझे ये टाइम पे ये काम करना है। और क्योंकि आपने कैलेंडर में रिमाइंडर नहीं डाला कि मुझे ये काम ये टाइम पे ये काम करना है, वो टाइम पे कोई भी बंदा आके आपसे कुछ भी काम करा सकता है। हेलो, यस बात सर। समझ? Yes. रिपीट विद मी, फोकस मीन्स किलिंग ऑल अदर ऑप्शंस। Focus means killing all Focus other means options. killing all other options. और क्योंकि मैंने दूसरे सारे ऑप्शंस मारे ही नहीं है, वो टाइम पे कोई भी बंदा आके मेरे से कुछ भी करा के जाता है। तो मुझे लगता है मैं बॉस हूँ, मैं ओनर हूँ, पर बेसिकली मैं मेरे एम्प्लॉयज का ग्लोरीफाइड सेक्रेटरी हूँ।
एक मजाक की बात बोलूं, आपको बुरा ना लगे तो। चलो लेट अस डू अ हाँ जी। डेमो बड़ी। ओके रोहन, अनम्यूट करोगे 1 मिनट के लिए? हाँ सर। यस। रोहन मेरे को बताओ, आने वाले गुरुवार को शाम को 4 से 5 के बीच में आप क्या कर रहे हो? हमने डिसाइड किया है कुछ। सर कुछ डिसाइड तो नहीं किया है, तो मोस्ट लाइकली आप मेरे को आपके ऑफिस में केबिन में मिलोगे, यस और नो? यस। तो अगर आपका केबिन में अगर मैंने एक सीसीटीवी कैमरा लगाया है तो कैमरा क्या कैप्चर करेगा? 4 और 5 के बीच में आप क्या काम करोगे? जो कुछ सामने बंदा मेरे आएगा। केबिन के अंदर आएगा, मैं उसका काम कर लूंगा। राइट। कोई बंदा मेरे केबिन में नहीं आया तो मैं थोड़ा ईमेल ईमेल खेल लूंगा, हाँ। और अगर ईमेल ईमेल खेल के हो गया तो मैं थोड़ा व्हाट्सएप व्हाट्सएप कर लूंगा, और वो हो गया तो उसके बाद देन नेटफ्लिक्स देखेगा, मैं इंस्टाग्राम का रील्स देखेगा, ऐसा कुछ तो भी करेगा, यस और नो? राइट। और कोई आपको फोन करेगा तो आप क्या बोलोगे? आई एम वेरी बिजी। आई नो आप सब लोग सुबह 10 बजे जाते हो, रात को 7-8 बजे घर पे आते हो, बहुत काम करते हो, बहुत मेहनत करते हो, लोगों को मिलते हो, आप उखाड़ क्या रहे हो? आपने अचीव क्या किया? हेलो, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? 98% ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट नो ऑन अ मंडे what they are doing on a Thursday. You happen to be a part of that 98%, and this has to stop yesterday for the rest of your life. Don't you find it absurd? मुझे मालूम भी नहीं है मैं क्या करने वाला हूँ, तो कोई भी आके वो टाइम पे कुछ भी करा के जा सकता है। ये कोई जिंदगी हुई? हेलो, any? Yeah, exactly. I call this aimless busyness, Praveen. Look busy, do nothing. हेलो, सही कितने है। बात समझ में आ रही है? सही है सर। Now I am coming to the most बिल्कुल। important. Yeah, now I am coming to the most important 10 minutes of today's session. Are you all ready? अगर आप ये एक यस कॉन्वर्सेशन समझोगे यस और इसको इम्प्लीमेंट करोगे, आपका टर्नओवर डबल हो जाएगा। एंड 89% ऑफ द पीपल जिन्होंने मेरे साथ ये किया है, और मेरे पास कुछ टूल्स है, मेरे पास एक सिस्टम है, एक मेथड, एक स्ट्रक्चर है हैंड होल्ड करने का, अगर आप वो इम्प्लीमेंट करोगे तो आप भी ये कर पाओगे। आर यू रेडी फॉर इट? यस। तो ऑफिस में प्यून होता है, हम लोग प्यून को किस बात के पैसे देते हैं? चाय ला के दे, पानी ला के दे, बैंक में जाके चेक करा वगैरह वगैरह, ये सर नो? यस तो सर। हमको क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी होता है कि हम हमारे प्यून को किस बात का पैसा देते हैं, यस और नो? यस और हर महीना यस एक सर। फिक्स तारीख को हमारे प्यून को तनख्वाह मिल जाती है, यस और नो? यस। यस नाउ यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय इन योर कंपनी, यस और नो? तो आपका यस जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? आपको कभी प्यून को सैलरी देने में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आप दोनों के बीच में एकदम क्लियर है कि उसका काम क्या है, वो आपको कभी नाराज नहीं करता। यू आर द प्राइमरी ऑफिसर ऑफ योर कंपनी, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय ऑफ योर कंपनी, यू आर द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ योर कंपनी। आपको किस बात का पैसा मिलता है? नाउ यू मस्ट बी डूइंग 40 थिंग्स इन योर कंपनी, माई कंडोलेंसेस टू यू। पर अगर आप ये 40 काम जो आपके काम में करते हो, अगर आप उसको रैंक करोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पे क्या आएगा? हेलो, जवाब। आप आपकी कंपनी में बहुत सारे काम करते होंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है आपका? नंबर 1 2 3 4 पे क्या आएगा? अगर 40 काम है तो 40 काम को लिखोगे और फिर खुद को पूछोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो क्या जवाब आएगा? मेकिंग द और क्लाइंट उसका ऑर्डर प्रायोरिटी। फॉलो करने के लिए मेरे को कौन पैसा देगा? यस, गो अहेड। प्रायोरिटी उसका काम का ये तय करेंगे। अरे पर व्हाट डू यू गेट पेड फॉर? प्यून को क्यों पैसा मिलता है? चाय ला के आ, पानी ला के आ, बैंक में चेक डाल के, आपको समझ में आता है, यस और नो? आपको किस बात का सैलरी मिलता है? नाउ सम ऑफ यू सेइंग मैं तो बॉस हूं ना, तो मैंने मेरा पैसा लगाया बिजनेस पे, मेरे को उस बात का पैसा मिलता है, ये भ्रम है। अगर आप आपके बिजनेस में पैसा लगाना बंद कर दोगे तो आपका बिजनेस अपने आप बंद हो जाएगा। आप में से कुछ लोगों को लगता है मुझे मेरे टैलेंट का, मुझे मेरे स्किल का, मुझे मेरे एक्सपर्टीज का पैसा मिलता है, यस और नो? यस आप भ्रम में जी रहे हो, आपको आपके टैलेंट और स्किल के लिए दुनिया में कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। क्या बात कर रहा है मनन, ये कुछ भी बेतुकी बातें कर रहा है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। अगर मुझे कपड़े सिलवाने हैं तो मैं फाइनेंशियल प्लानर के पास जाऊंगा क्या? नहीं हेलो, नहीं
और अगर मुझे पैसे बनाने हैं तो क्या मैं दर्जी के पास जाऊंगा? नहीं। नो। तो आपको भले लगे कि आपको आपके स्किल, आपके एक्सपर्टीज और आपके टैलेंट के लिए पैसा मिलता है, आपका स्किल, आपका एक्सपर्टीज और आपका टैलेंट अगर नहीं होता ना, तो आपको कोई नौकरी भी नहीं देता। सही बात, यस और नो? Yeah. Yes. तो अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं है तो यू बिकम अनएम्प्लॉयड। बट व्हाट आर यू रियली गेटिंग पेड फॉर? The first thing, very good, धंधा लाने के लिए, the first thing that you are getting paid for is sales. The second thing that you are getting paid for is collection. Thank God म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आपको कलेक्शन के प्रॉब्लम नहीं आते, क्योंकि हर महीने की 21 तारीख 15 तारीख को बैंक में पैसा आ ही जाता है बिना कुछ किए। यस और नो? हेलो? So the Yes. first thing you're getting paid for is sales. The second most important thing you're getting paid for is collection. And the third most important thing you're getting paid for is getting things done from others. Getting things done from others is opposite of doing other people's work. Getting things done from others is opposite from delegation. Delegation में क्या होता है? खो खो और खो, और उसके बाद में भगवान मालिक की इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? हेलो? नाउ Yes. 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 टिपिकली आप 10 से 7 काम करते हो, तो उसमें आप लोग प्रोडक्टिव काम कितने घंटे निकालते हो? सो लेट्स से यस्टरडे मस्ट हैव बीन अ वर्किंग डे फॉर मोस्ट ऑफ यू, यस और नो? तो Yes. आपने Yes. कितने घंटे प्रोडक्टिव काम कर लिया? 2 चैट बॉक्स hours, 2 to 3. इन अ टिपिकल डे हाउ मेनी आवर्स ऑफ योर वर्क इज प्रोडक्टिव? बोलो। 2 2 to hours, 3. 3 hours. 3 hours हेलो? maximum. बोलो 3 बोलो। hours. 2 से 3 घंटे, यस 2 और नो? to 3 hours. Yes. यस और नो? अब कल के दिन आप लोगों ने हार्डकोर सेल्स में कितना टाइम डाला? किसी बंदे को कोटेशन देना, किसी बंदे को प्रेजेंटेशन देना, चलो प्रेजेंटेशन देना तो एक किस्म का सेल हो गया, पर उसके अलावा कितने घंटे? अब Minutes. फाइनेंस इंडस्ट्री में लोग दिन का 1-2 मीटिंग करें तो बहुत अच्छी बात होती है। अगर आप किसी और बिजनेस में देखोगे ना, तो ऑन एन एवरेज एक एंटरप्रेन्योर 50 घंटा डालता है अपने काम में हर हफ्ता। 50 घंटे में से वो अपना टॉप 3 का काम 5 से 8 घंटे के ऊपर करता नहीं है। इसका मतलब हुआ लोग 10-15% प्रोडक्टिविटी पे काम करते हैं और महीने का 2-3 लाख कमाते हैं। अगर वो 5-8 घंटे जो हफ्ते में डालता है उसको 10 घंटा 20 घंटा कर दिया, तो उसका प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ेगा? 3 से 4 गुना हो जाएगा, 2 से 3 गुना हो जाएगा, यस और नो? हम लोगों को आदत पड़ी हुई है of getting involved in everything other than what is most important for us, and this is a massive lack of focus habit. इसके लिए हम लोग जो टारगेट लेते हैं वो नहीं होता है बहुत बार। What if I give you a system, a method, a structure, a set of tools, और हम आपके सर पे बैठ के आपको हैंड होल्ड करा के आप जो जबान देते हो वो पूरी कराए, तो फर्क पड़ेगा रिजल्ट्स में? आपका कुछ Yes. पैसा है तो आप रिकवर करोगे? Have you got this? So this is called Yes. lack of focus. Yes. Next one is Yes. lack Yes. of Definitely. next one is lack of clarity. ये काम करेगा कौन? Have you heard this? We have to do this, we have to do that. ये V का मतलब क्या होता है? रोहित, V का मतलब होता है anybody other than me. जब मैं बोलता हूँ ना we have to do this, we have to do that, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ तू मुझे ये करके दे, तू मुझे वो करके दे, और सामने वाला पता है क्या सुन रहा है? उसने बोला है we have to do this, we have to do that, मुझे तो कुछ नहीं करना है। हेलो? सो हम लोग बहुत लूज इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हमको क्लैरिटी नहीं होती है हु विल डू दिस। बेसिकली कोई भी काम जिसका कोई माई बाप नहीं है, जिसका कोई मम्मी पापा नहीं है, वो काम बेचारा लावारिस हो जाता है और फिर वो काम होता ही नहीं है। आपने ये सुना है सर आपका पेमेंट प्रोसेस में हो जाएगा, वो आदमी को कभी पता ही नहीं होता है प्रोसेस क्या होता है। वो प्रोसेस में कौन बंदा किसको कहाँ से किस तरह से काम देगा हमको मालूम नहीं। हम एक ही बंदे के साथ फॉलोअप करते रहते हैं और वो बोलता है सर हाँ मैं अकाउंट्स को पूछ के आपको बताता हूँ, और हमको अकाउंट्स नाम का बंदा कभी कंपनी में मिलता ही नहीं है। How many of you are understanding what I'm saying? So lack of clarity is who will do this job, and because we have not given crystal clear instructions, और हम लोग राइटिंग में तो इंस्ट्रक्शंस देते ही नहीं है, हम लोग वर्बली देते हैं, मुझे लगता है मैं आपको मिलूंगा और आपको मिलता है आप मुझे मिलोगे, और वो चक्कर में कोई काम नहीं करता। Have you heard this? Let us meet for a cup of coffee. Hello? Yes, sir.
Yes, फिर आप yes, क्या बोलते definitely. हो? यस यस। उसके बाद क्या होता है? ना वो फोन करता है, ना आप मिलते हो। आपको लगता है वो करेगा और उसको लगता है आप करोगे, और ये चक्कर में दो में से कोई भी नहीं करता है। Doesn't this happen to the best of us? Yes, no, maybe. Next one is lack of purpose or lack of motivation. 30 seconds before, 15 seconds before, 5 seconds before, 1 minute before doing this thing, छोड़ना अभी नहीं, बाद में कंटाला रहा है, I will do this later. और आपका लेटर कब आता है? लेटर। Does this not happen to the best of us? सबको स्वर्ग जाना है लेकिन मरना किसी को नहीं है। सबको 1 करोड़ रुपया चाहिए, सबको ये सिंगापुर का वेकेशन चाहिए, सबको ये कॉन्टेस्ट जीतना है, वो कॉन्टेस्ट जीतना है, लेकिन वो एक्शन लेने का जब टाइम आता है ना, तो ये एक्शन मैं कब लूंगा? बाद में। और मेरा बाद में कब आएगा? बाद में। So you don't have a big enough, large enough, strong enough reason at the time of taking the action. इसकी वजह से कैलेंडर में अलार्म भी डालते हैं ना, तो उसके बाद हम लोग उसको स्नूज करके बैठ जाते हैं अनुज। Now a lot of times we are delegating our work to somebody below us. If he does not have a big enough, large enough, strong enough reason to do it, तो वो भी नहीं करेगा। हमारा काम है टू गिव हिम अ बिग इनफ, लार्ज इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ रीजन, और हमारा काम है टू मेक हिम आइडेंटिफाई उसको क्या मिलेगा, व्हाट इज इन इट फॉर हिम टू डू दिस जॉब। और क्योंकि हम उसके बारे में क्लियर नहीं है, हमको जो रिजल्ट चाहिए वो हमको नहीं मिलते। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ नोइंग द स्टेप्स कि ये काम होता कैसे है। सो आई नीड वन वॉलंटियर ओवर हियर। यहाँ पे कोई है जिसको चाय बनाना आता है? हेलो, इज देयर Yes, एनीबॉडी ओवर हियर जिसको चाय बनाना आता है? हेलो, yes, yes. तो जरा अनम्यूट करके चाय बनाने के स्टेप्स बताओ। मैं आपके घर में आया और मैंने आपको बोला 1 कप चाय दीजिए, आधा दूध, आधा पानी और 1 चम्मच शक्कर, ठीक है? आप मेरे को डिटेल में बताओ आप चाय कैसे बनाओगे। अभी आपको मेरा एग्जाम्पल बहुत ट्रिवियल लगेगा, लेकिन ये एग्जाम्पल का भयंकर कॉन्सिक्वेंस है आपका लाइफ में। और अगर जो जो इंसान को चाय बनाने को आता ना, वो इंसान 10 करोड़ से 1000 करोड़ की कंपनी आराम से बना लेता है। People, can you please switch on your camera? Otherwise, it will not be an interesting session for you. आपको मजा नहीं आएगा, आपका कैमरा चालू रखे। टेल मी, वन पर्सन वॉलंटियर प्लीज मेरे को चाय बनाने के स्टेप्स बताओ। कौन बोलेगा? ओके, समीर जी Pan, ट्राई। ओके, राजेश सर ट्राई करो, अशोक ट्राई करो, कोई भी एक बंदा ट्राई करो। पैन लेंगे, गैस पे रखेंगे, गैस ऑन करेंगे, वेरी गुड। और फिर अगर जितने कप चाय बनानी है, मान लीजिए 2 कप बनानी है, तो 1 कप पानी डालेंगे, थोड़ी देर उबालेंगे, फिर पत्ती डालेंगे, फिर चीनी डालेंगे जितनी भी रिक्वायर्ड है। अगर किसी ने चीनी कम लेनी है, ज्यादा लेनी है, एज पर टेस्ट। उसके बाद दूध मिला के, और जब अच्छी तरह उबाल के, तो चाय तैयार हो जाएगी। वेरी गुड सर। अब मेरे को एक बात बताओ सर, आपने दूध कहाँ से लाया? दूध घर में होगा ना। कौन सा? तो दूध डाला कब, कैसे डाला दूध? दूध डालो, चाय पत्ती डालो, चीनी डालो, किधर डाला ये सब? फ्राइंग पैन में। निकाला कहाँ से ये सब? फ्राइंग पैन कहाँ से आया सर? फ्राइंग पैन तो घर में जो यूटेंसिल्स होंगे वहीं। आपने गैस कैसे चालू किया? लाइटर से। आपने लाइटर तो लिया ही नहीं। लाइटर कहाँ था? किचन में ही था। किचन में कहाँ था? वो गैस के पास ही पड़ा होता है। और सर मैं तो आपको मालूम है, और सर आपको मालूम है अभी आपके घर में रसोई नहीं बनेगी, क्योंकि आप गैस बंद करना भूल गए। तो गैस तो खत्म हो जाएगा। तो सर चाय बनाने में 65 स्टेप है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, अगर मैं आपके घर में आऊंगा तो आप मुझे चाय बना के पिलाओगे और चाय अच्छी बनेगी। लेकिन जैसे ही आप चाय बनाने का डेलीगेट करने का बात करते हो ना सर, आपके यहाँ पे इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम है ना, कि आप जो सोचते हो ना ये तो नेचुरल बात है, इतना कॉमन सेंस नहीं है क्या? आप जिसको कॉमन सेंस बोलते हो ना, वो आपके अलावा किसी के पास नहीं है। दूसरा बात बोलूं, आपका कॉमन सेंस रोज सुबह बदली होता है, और फिर आप सामने वाले को बोलते हो कितने साल से मेरे साथ काम कर रहा है, तो कब सुधरेगा? हाउ मेनी ऑफ यू सेड दिस टू समबडी इन योर लाइफ? 5 साल से मेरे साथ काम कर रहा है, कब सुधरेगा? 2 साल से मेरे साथ काम कर रहा है, कब सुधरेगा? इतनी छोटी सी बात तुमको समझ में नहीं आती क्या? परसों ये क्लाइंट का काम तुमने बराबर किया, यही फॉर्म भरना था, तो आज तुमने इतना गड़बड़ क्यों कर दिया? हम इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, आपको कब समझ में आएगा कि उसको 5 साल से आपकी भाषा समझ में नहीं आ रही है?
अब सर चाय बनाने में आपने सर 20 स्टेप बताए और मैं आपको 65 बताऊंगा, और आपका एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन ना ये 65 और 20 के बीच में फटता है ना, उसी के लिए जो काम आपको मालूम है 1 दिन में होना चाहिए ना, वो कभी कभी 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 12 दिन में भी नहीं होता है। तो सर चाय बनाने के स्टेप्स कुछ ऐसे है, किचन में जाओ, लाइट ऑन करो, कैबिनेट खोलो, पतीला तो निकालो जिसमें चाय बनानी है, वो कैबिनेट बंद करो सर। उसके बाद मटके के नीचे जाओ, कड़ी खोलो, जितना पानी चाहिए लो, कड़ी बंद करो सर, तब जाके वो फ्राइंग पैन में पानी आया। अब सर ये पतीला गैस पे तो रखो, फ्रिज खोलो, दूध का पतीला निकालो, फ्रिज बंद करो, दूध के पतीले के ऊपर एक लिड होता है, वो लिड को साइड पे रखो। मलाई वेरी इंपॉर्टेंट इन गुजराती, मारवाड़ी, कच्छी हाउस होल्ड, क्योंकि सर वो मलाई से ही मेरा परपोता घी खाना चाहिए, ऐसा घर का घर का सालों का नियम है। तो मलाई को साइड पे रख के सर जितना दूध चाहिए डालो, उसके बाद वापस वो लिड लो, पतीले के ऊपर रखो, फ्रिज खोलो, पतीला अंदर रखो, फ्रिज बंद तो करो सर। अगर आप फ्रिज बंद नहीं करोगे और पतीला वापस नहीं रखोगे तो क्या होगा संदीप? गर्मी के मौसम में दूध का पतीला बाहर रहेगा ना तो दूध खराब हो जाएगा, दूध फट जाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं है, आपने इंटरकास्ट मैरिज की, एकदम बिपाशा बासु टाइप एकदम लड़की को एकदम पटा लिया, वो बंगाली लड़की थी, आपने उसको बोला रानी की तरह रखूंगा, कैसे भी करके आपने उसको आपके जाल में तो फांस दिया। वो बेचारी शादी करके आ भी गई, आपके यहाँ पे रहने भी लगी। वो बेचारी सुबह 6 बजे उठती है, नौकरी करती है, तो घर वालों के लिए रसोई वगैरह सब करती है, बेचारी 9 बजे निकल जाती है। आप तो सेठ आदमी हो, आप तो 10 बजे आराम से निकलते हो। वो बेचारी 6 साढ़े 6 बजे घर पे आती है, वापस घर वालों का खाना वगैरह, ये वो किचन वगैरह वो सब काम बेचारी करती है, सब लोग के लिए खाना बनाती है, थक जाती है। अभी आपकी नई नई शादी हुई है संदीप, तो आप बोलते हो क्या हुआ जानू, तो आपकी बीवी बोलती है तेरी जान ना ले लूं। फिर आप पूछते हो क्या हुआ बेबी, तो फिर आपकी बीवी बोलती है तुम लोग खुद को बोलते हो ना रानी की तरह रखोगे, यहाँ पे नौकरानी बना के रख दिया है। इवन आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, आई एम अ वेल क्वालिफाइड पर्सन, तुम्हारी मम्मी मेरे को इतना ताना क्यों मारती है? आज दूध का पतीला बाहर रह गया, दूध फट गया, तो तुम्हारी मम्मी ने मुझे गाली दी, मेरे मम्मी पापा को गाली दी, मेरी परवरिश के ऊपर क्वेश्चन किया, मेरे फूफा को गाली दी, ये सब तो ठीक था, ममता बनर्जी को गाली क्यों दी? तुम्हारे चक्कर में मैंने मच्छी छोड़ दी और तुम इस तरह से मेरा सुलूक करते हो, ये कोई तरीका हुआ? तुम खुद को समझते क्या हो? और उसने 100 रुपए का नोट डाला और सीधा संदीप के मुंह पे मार दिया। अब पंडित ने शादी के टाइम पे मैनुअल तो दिया नहीं था कि बीवी नाराज होती है तो क्या करना चाहिए। तो संदीप ने एक और गलती कर दी, उसने पूछा ये किस बात का? तो उसकी बीवी ने बोला 66 रुपीज फॉर द मिल्क एंड 34 रुपीज कीप द चेंज। समझते क्या हो? इवन आई एम अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमन, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। अब संदीप उसकी बीवी को पटा रहा है, वापस मैंने बोला ना पंडित ने मैनुअल तो दिया नहीं था, बीवी को कैसे पटाते शादी के टाइम पे? तो बोलता है नहीं नहीं मेरी मम्मी का ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था। और जितनी बार उसकी मम्मी की साइड लेता है या कुछ बोलता है, वो दोनों के बीच में और गर्मा गर्मी हो रही है। अब गलती से संदीप की मम्मी ने ये सब सुन लिया और वो जाके संदीप के पापा को बता देती है ये लड़की हमारा घर तोड़ के रख देगी, मैंने बोला ही था ये बंगाल के लोग बराबर होते ही नहीं है, हम जैन लोग हैं, हमको हमारे घर में राजस्थान से किसी लड़की के साथ शादी कराते तो काम हो जाता, मेरे मामा के चाचा के फूफा के बच्ची के साथ शादी कराते तो मेरे पैर दबाती, मेरी खूब सेवा करती, इतना ज्यादा डोनेशन लेके आती, ये करती वो करती, देखो ये लड़की ने हमारी जिंदगी खराब कर दी है। अब संदीप लगा हुआ है उसकी बीवी को पटाने में और संदीप के पापा लगे हुए हैं उसकी बीवी को पटाने के लिए। यही करते हो ना गुरुवार को 4 से 5 के बीच में तुम लोग, कि ये फॉर्म नहीं आया, ये डॉक्यूमेंट नहीं आया, ये केवाईसी नहीं हुआ, ये कस्टमर का ये नहीं हुआ, तुमने इसके साथ फॉलोअप नहीं किया, तुमने उसके साथ फॉलोअप नहीं किया। सब लोग आ जाते हैं तुम्हारे पास और तुम तो सब लोगों का प्रॉब्लम ही सॉल्व करते हो, बिकॉज यू आर सीईओ ऑफ योर कंपनी, चीफ एवरी अदर थिंग ऑफिसर। आप और कुछ काम ही नहीं है तो आप यही करो। यही हो रहा है ना। हम चाय बना रहे थे ना, आपको कॉन्सिक्वेंस समझना है, हर स्टेप जिस तरह से लेना चाहिए नहीं लेते राजेश जी, उसका एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन पे कितना बड़ा असर होता है। और आपकी कंपनी में सिस्टम और प्रोसेस क्यों नहीं बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने क्लोन नहीं बना पा रहे हो, आप चीज़ों को डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। अब ड्रॉवर खोलो, लाइटर निकालो, ड्रॉवर बंद करो, नॉब ऑन करो, टक करके साउंड आया कि नहीं, आग लगी कि नहीं देखो तो सही। ड्रॉवर खोलो, लाइटर अंदर रखो, ड्रॉवर बंद करो, क्योंकि चीजें वहीं होनी चाहिए जहाँ पे उनकी जगह होती है। बाकी आप एक्सेस चीजें ऑर्डर करते हो, इन्वेंट्री बढ़ जाती है और फिर वो लॉस में चले जाते हो। अब दूध और पानी उबल रहा है, ऊपर का कैबिनेट खोलो, शक्कर का डब्बा, चाय पत्ती का डब्बा, चाय मसाले का डब्बा निकालो, दरवाजा बंद तो करो, बाकी सर पे चोट लगेगी। अब शक्कर का डब्बा खोलो, गुजराती घर में शक्कर के डब्बे के अंदर आपको कभी चम्मच नहीं मिलेंगी, जैन लोगों के घर में। क्यों? क्योंकि गीली चम्मच से मूंगी होती है,
हम जैन लोग इंसान को तो जैसे भी ट्रीट करें वैसे ट्रीट करें, लेकिन हम लोग मूंगी नहीं मारते, हम लोग अहिंसावादी लोग हैं। अभी चम्मच स्टैंड के पास जाओ, एक ड्राई चम्मच लो, एक चम्मच शक्कर डालो, डू इट एज पर स्पेसिफिकेशंस ऑफ द कस्टमर। जितना मसन आया, जितना मन किया उतना डालना नहीं चलेगा राजेश जी। ससुर जी को डायबिटीज से कोई मर जाएगा। एक चम्मच का मतलब एक चम्मच होता है। ये चम्मच को साइड पे रखो, ढक्कन बंद करो, चाय पत्ती का डब्बा खोलो, चम्मच लो, चाय पत्ती डालो, चाय पत्ती डालने के बाद चम्मच वापस रखो, डब्बा बंद करो, चाय मसाले का डब्बा खोलो, उसके अंदर छोटू चम्मच है, वो छोटू चम्मच से चाय मसाला डालो, छोटू चम्मच वापस डब्बे के अंदर डालो, डब्बा बंद करो। अब गैस का नॉब ऑन करो। अब चाय पक रही है, चाय का कलर चेंज हो रहा है, चाय उबल रही है, चाय कड़क हो रही है, चाय तैयार हो रही है, चाय का स्वाद चढ़ रहा है, आपको फ्रेग्रेंस आ रही है। शक्ल मत देखो, कैबिनेट खोलो, 3 बर्नियां वापस रखो, ड्रॉवर तो बंद करो, चोट लगेगी। अब उबार आया, अब आपको जैसी चाय चाहिए वैसी बन गई, गैस तो बंद करो बाबा। उसके बाद सर छानो, क्या छानो, किधर छानो, कैसे छानो? तो सर कैबिनेट खोलो, कप एंड ससर निकालो, कैबिनेट बंद करो, वापस ड्रॉवर खोलो, पकड़ निकालो, छन्नी निकालो, ड्रॉवर बंद करो। आप राइट हैंडेड हो तो आप लेफ्ट हैंड से पकड़ से चाय के बर्तन को उठाओगे, छन्नी को चाय के कप के मुंह के ऊपर रखोगे और छानोगे। और सर ये चाय का कचरा है ना, ये डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सर इसको पता है क्या बोलते हैं? स्क्रैप सेल्स। अगर वो लेबर जॉब करता है ना तो उसकी कमाई इसी में, बाकी लोग कमाने नहीं देते। वो कचरा डालो, बर्तन और पकड़ जो है वो सिंक में डालो, अब आपका एक कप चाय तैयार हुआ। आप में से कोई यहाँ पे लोन का काम करता है क्या? आप किसी को लोन दिलाते हो क्या? प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। आप में से यहाँ पे कोई भी लोन दिलाता है क्या किसी को? देता हूँ, लेकिन प्रोसेस प्रोसेस जब आएगा तब करेंगे। हाँ, आपको मालूम है ये लोन वाले ना सबसे बड़ा झूठ पता है क्या बोलते हैं? सर हम 7 वर्किंग डे में आपको लोन दिला देंगे, सर हम 15 वर्किंग डे में आपको लोन दिला देंगे। जिंदगी में कभी वो 7 दिन में और 15 दिन में लोन निकलता ही नहीं है। फिर आप लोग पता है क्या बोलते हैं? सर वो बैंक वाला ये मांग रहा है, वो मांग रहा है। यहाँ पे ना एंड्रोमेडा करके कंपनी है। एंड्रोमेडा इज द बिगेस्ट डीएसए फॉर सिटी बैंक। और एंड्रोमेडा साल का करीब करीब मेरे हिसाब से 8 से 10 हजार करोड़ का डिसबर्समेंट कराता है। सर एक लोन नहीं है जो उससे 7 दिन में की हो पिछले 40 साल में। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? क्यों पता है? किसी को कुछ समझ में ही नहीं होती प्रोसेस क्या है। 40 साल से वो आदमी एक ही काम करता है, लेकिन वो कस्टमर को दूसरी बार जाके कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो मांगेगा ही। उसको चेकलिस्ट लेके जाके सारे डॉक्यूमेंट एक ही टाइम पे कलेक्ट करना उसके लोगों को समझता ही नहीं है। अगर आप डीएसए हो तो आपको मालूम है ना सामने वाले कौन सी 10 चीजें मांगता है। मैंने आज तक एंड्रोमेडा में एक चेकलिस्ट देखा नहीं है। और सर वो 8 से 10 हजार करोड़ का डिसबर्समेंट करते हैं साल का। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट डीएसए। ये चाय बनाने के स्टेप्स का प्रॉब्लम है। हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? जिसको ये एग्जांपल समझाना आपको समझ में आएगा कि क्यों 2 घंटे का काम मेरा 7-7 दिन तक नहीं होता है। क्योंकि आपके चाय बनाने के स्टेप्स टूटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को काम करना नहीं आता, ऐसा नहीं है कि तुकाराम को बेचना नहीं आता है, लेकिन ये चाय बनाने के स्टेप्स में गैप है ना, उसके लिए काम नहीं होगा। मैंने आपको सवाल पूछा था, आप लोगों ने जो रिजल्ट लिखा है उसके आप लोगों ने एक्शंस लिखे हैं, यस और नो? आपके खुद के लेवल पे बहुत सारे चाय बनाने के स्टेप्स मिसिंग है। इसके लिए आप लोगों ने लिखा है 60%, 70%, 80%। और जो 100% बोल रहा है मेरे को उसके पैर छूने। How many of you are understanding what I am saying? I hope you are learning something. मैंने मेरे लिस्ट में लिखा ही नहीं है वो बंदा कौन सी वजह से मेरे को ना बोलेगा, उसके क्या क्या ऑब्जेक्शन है, उसके क्या क्या काउंटर क्वेश्चन। आप देख लो पढ़ के, नहीं लिखा है आपने। और आपने लिखा नहीं उसके मैं जवाब क्या दूंगा। आपने ये भी नहीं लिखा है कि उसको लॉजिकली मैं कैसे समझाऊंगा और उसको इमोशनली कैसे समझाऊंगा। आपने ये भी नहीं लिखा है कि मैं 1 करोड़ रुपए का उसके पास जा रहा हूँ इंश्योरेंस का प्रपोजल लेके, तो मैं किसी के साथ रिहर्सल करूँ तो सामने वाला बोलेगा क्या, और वो सामने वाला बोलेगा तो मैं जवाब क्या दूंगा। ऋषित कुमार आप बहुत लेट आए हो तो मैं ये सब्जेक्ट नहीं छू पाऊंगा। भाई साहब बेचारे डिस्ट्रैक्टेड होंगे तो लेट हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? आई होप आई एम एबल टू क्रिएट सम वैल्यू फॉर यू कि हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूशन में डिले क्यों हो रहे हैं। व्हाट आर
नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ स्किल्स, कॉम्पिटेंसी एंड टैलेंट। मैं जो बंदे को जो काम दे रहा हूँ, डज ही हैव द स्किल्स, कॉम्पिटेंसी एंड टैलेंट टू एग्जीक्यूट व्हाट आई वांट टू। खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटता हमेशा खरबूजा ही है। क्या आपके पास स्किल्स, कॉम्पिटेंसी और टैलेंट है कस्टमर से पैसा निकालने का? क्या आपके लोगों के पास स्किल्स, कॉम्पिटेंसी और टैलेंट है वो काम करने का जो आपने उसको दिया है? अगर नहीं है तो आपको उसको देना पड़ेगा या आपको उसको कहीं भेजना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई दीप थॉट दैट यू शुड गेट मी हियर, दैट पीपल नीड टू लर्न व्हाट प्रोडक्टिविटी इज। इफ यू डेवलप योर स्किल्स, कॉम्पिटेंसी एंड टैलेंट, आपकी काम करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। जब टाइम आता है ना काम करने को, कुछ इन्फॉर्मेशन लगती है, कुछ डेटा लगता है, वो डेटा नहीं है ना प्राज्वल, तो ये काम ये हफ्ता नहीं होगा, अगले हफ्ते होगा। डज दिस नॉट हैपन टू द बेस्ट ऑफ अस? So when you don't have a powerful answer in writing for any result that you want to achieve, who needs to do what, by, when and how to make this result happen? क्योंकि आपके पास लिखित में ये जवाब नहीं है ना, आपका एग्जीक्यूशन टूट जाता है। आपके इरादे बहुत अच्छे हैं, आपका इंटेंट बहुत अच्छा है अनुज, लेकिन जब टाइम आता है ना काम करने को, आपका काम नहीं होता। Have you got this? Last is lack of reality. What does it look like in the world if my goal was achieved? Human beings are very good planners and very bad doers. Let's say I want to lose weight. तो एक सीसीटीवी कैमरा को दिखना तो चाहिए ना मैं चल रहा हूँ कि मैं नहीं चल रहा हूँ, और कैमरा कैप्चर कर रहा है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में दबा के मिठाई खा रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, तो क्या वजन अपने आप कम होगा? तो हम लोग बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, हम लोग प्लान तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बाद में हम लोग वो प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्शंस लेते ही नहीं है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्शिया प्रॉब्लम उल्लासी। हम इनर्शिया में रह जाते हैं, हम काम ही नहीं करते। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स आर, डू माई नंबर्स एड अप, डज माई टाइमलाइन मैच। मैं ये दोनों पॉइंट आप लोगों को एक साथ समझाता हूँ। लेट्स से आई एम अ सेल्स पर्सन और आपने मुझे नौकरी पे रखा और आपने मुझे बोला 20 लाख रुपए का सेल करना है महीने में, तो मैंने बोला हो जाएगा। अब 20 लाख रुपए का सेल करना है तो मुझे हर हफ्ता 5 लाख बेचना है, 5 इंटू 4 20। मान लो ये प्रोडक्ट है जिसका कीमत 1 लाख रुपया है, तो मुझे 5 लोगों को फिजिकली ये प्रोडक्ट बेचना है। अगर मुझे फिजिकली 5 लोगों को हर हफ्ता ये प्रोडक्ट बेचना है और मान लो आई एम अ ब्रिलियंट सेल्स पर्सन और मेरा कन्वर्जन रेशियो बहुत अच्छा है, तो मुझे कम से कम 10 लोगों को तो मिलना पड़ेगा। मैं हर हफ्ता 10 लोगों को मिलूंगा तो 5 को बेच दूंगा। ये 10 लोगों को फिजिकली मिलने के लिए मुझे कम से कम 15 से 20 लोगों का फोन लेके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग लास्ट मिनट में मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देंगे। यस और नो? अब ये 15-20 लोगों को मिलने के लिए मुझे कम से कम 30 से 40 लोगों के साथ फोन पे बात करनी पड़ेगी, तब जाके मेरे को 15-20 अपॉइंटमेंट मिलेगा। यस और नो? कुछ लोग बोलेंगे अभी नहीं, बाद में, नॉट इंटरेस्टेड, अगले महीने आ जाओ, मैं नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। यस और नो? अब ये 30-40 लोगों को फोन पे बात करने के लिए मेरे पास कम से कम 70-80 लोग तो होने चाहिए जिससे मैं बात करूंगा। यस और नो? यस। तो मेरे पास तो 10 ही लोगों का नाम और नंबर है, तो सेल्स छत से गिरेगा क्या? और लास्ट टाइम मैं 10 नए लोगों को एक हफ्ते में कब मिला? मनन भाई ये तो मेरा क्वार्टरली एवरेज है। तो आपका टर्नओवर डबल कैसे होगा? इसमें अच्छा बुरा, सही गलत, राइट रॉन्ग, गुड बैड कुछ नहीं है। पर अ लॉट ऑफ टाइम्स आवर नंबर्स एंड आवर टाइमलाइंस डोंट मैच। मेरी और दीप की बात होती थी आज से 1-1.5 साल पहले, मेरा दीप के साथ वही होता था। ऐसे दीप आप जो बोल रहे हो, आप जो नंबर बोल रहे हो और आप जो ड्यूरेशन बोल रहे हो, मैच नहीं हो रहा है। अगर मेरे एक्शंस में ही गैप है, मुझे दिख रहा है मेरे प्लान में ही गैप है, तो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। इसका इंटेंशन के साथ, मोटिवेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ कोई संबंध नहीं है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? नेक्स्ट वन इज इट एक्शनेबल? मनन भाई थैंक यू फॉर टुडे सेशन, मेरी आंखें खुल गई, मेरे को टाइम फोकस क्लैरिटी रेडी सब समझ में आ गया। अब तो मैं पक्का जाके वो बंदे को, मेरे को ना 5 लाख रुपए का SIP चालू कराना है। मार्केट का भी टाइम ठीक है, मैंने मेरे कैलेंडर में टाइम भी ब्लॉक कर दिया है। मैं कल 3 से 5 बैठ के ये प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, मैं इसका रिहर्सल करूंगा शाम को 5:30 बजे दीप के साथ, और मैं रेडी हो जाऊंगा और सोमवार को मैं उसको मिलके मैं उसको बेच दूंगा। और मेरा तो अपॉइंटमेंट भी सेट हो गया है। आप कल 3 बजे अलार्म बजेगा, आप बैठोगे भी, आपको टाइम फोकस क्लैरिटी रियलिटी समझ में भी आता है, आप लिख भी रहो मैं प्रेजेंटेशन बनाऊंगा। 3 से 3:15 हो जाएगा, 3:15 बजे आपका सर दुखेगा, 3:30 बजे आप क्रोसिन खाओगे और उसके बाद में आप काम छोड़ दोगे, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन बना लूंगा इज नॉट एक्शनेबल। हाथी को छोटे टुकड़े में तोड़ना पड़ता है। तो प्रेजेंटेशन में क्या डालना है? तो मैं अबाउट अस डालूंगा, मैं मेरे रिटर्न दिखाऊंगा,
मैं सेंसेक्स के कुछ नंबर्स दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड इतने अंडर वैल्यूड है, मार्केट अभी 35% डाउन है, इतिहास में कभी भी 35% डाउन कुछ है नहीं, ये इसके स्टैटिस्टिक्स है, ये फंड मैनेजर की ये डिटेल है, लॉजिकली ये सारी चीजों की वजह से पैसा कमाना चाहिए, इमोशनली ये सारी चीजों के लिए पैसा कमाना चाहिए, वो ये सारे सवाल पूछेगा, मैं ये सारे जवाब दूंगा। ये सारी चीजें आपके दिमाग में है, क्योंकि आपने लिखी नहीं है और आप 3 से 5 प्रेजेंटेशन बनाने की बात कर रहे हो। आप 3:30 पौने 4 बजे छोड़ दोगे, या तो आप वही घिसा पीटा प्रेजेंटेशन लेके जाओगे जो आप सदियों से लेके जा रहे हो। How many of you are getting what I'm saying? So human brain does only those things that it perceives as simple, easy, fun, doable, digestible, interesting, exciting, inspiring, and something that has a lot of time to do. जैसे ही आपको लगता है I have a lot of time to do this, आपका स्ट्रेस घट जाता है and chances of you doing that thing increase. By the same logic, human brain automatically rejects doing those things that it perceives as difficult, tedious, complicated, confusing, too much to do, over, or something that take a lot of time. जैसे ही आपके दिमाग में आता है ना इसको तो बहुत टाइम लगेगा रोहन, वही पल में आपको काम छोड़ देते हो। जैसे ही आपको लगता है ना ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये कंफ्यूजिंग है, दिस इज टू मच, आप वो काम छोड़ देते हो। हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? एक सिंपल टिप देता हूँ, आप लोग ऑफिस में जहाँ पे भी बैठते हो ना, वहां पे सामने देखो क्या है। आपके सामने दीवार है, या तो कांच है या तो पार्टीशन है। उधर ना आप एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा दो 3 फुट बाय 2 फुट का, और उसमें फॉन्ट साइज 192, एरियल फॉन्ट, बोल्ड कैपिटल, और उसमें ये छापो, लाउडली रिपीट विथ मी, इफ यू आर सिटिंग हियर, If you're sitting loudly here, repeat with me, If you are sitting here, who is selling? who is sitting? सेल्स जो है ना आपके केबिन में नहीं होता है, सेल्स जो है ना वो कस्टमर के केबिन में होता है, या तो जूम पे होता है। आप यहाँ बैठे हो तो बेच कौन रहा है? विराट कोहली को पानी भरने के लिए लगा दिया, रन कौन मारेगा? How many of you are understanding what I'm saying? So you need to be out there in the world where the real action is happening. और आप अगर लोगों को मिलने वाले नहीं और बेचने वाले नहीं हो, तो आप बोल रहे हो आपको आपका टर्नओवर डबल करना है, ये सब ख्याली पुलाव है, एक्चुअली चीजें ऐसी होती नहीं है। लास्ट वन इज, आर देयर एक्सटर्नल फैक्टर्स एट प्ले विच यू रियली नीड टू कंसिडर? सो कोविड वाज अ रियल एक्सटर्नल फैक्टर, तो हम लोग जूम सीख गए टू ओवरकम इट, यस और नो? तो आपकी इंडस्ट्री में दुनिया भर के एक्सटर्नल फैक्टर आते हैं, आपको उनको पहचानना पड़ेगा। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर को आप ओवरकम कर सकते हो और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर को आप ओवरकम नहीं कर सकते। जिनको ओवरकम नहीं कर सकते, आपको दूसरा कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, आप बॉम्बे पुणे हाईवे पे जा रहे हो और अचानक से लैंडस्लाइड हो गया तो रास्ता बंद हो गया, तो आप पुणे नहीं जा सकते, आपको यू टर्न मार के ओल्ड बॉम्बे पुणे हाईवे से जाना पड़ेगा। हैव यू गॉट दिस? तो इसको बोलते हैं you'll have to find a way to circumvent the problem you are in. एक्सटर्नल फैक्टर ढूंढना जरूरी उसके लिए ताकि आप रियलिटी को तोड़ पाओ, मरोड़ पाओ। आप रियलिटी को ढूंढ के बैठ नहीं सकते कि एक्सटर्नल फैक्टर है तो मैं क्या करूं। अनदर इज, बॉम्बे पुणे जा रहे थे और रास्ते में 3 पत्थर थे, तो आप क्या करोगे? गाड़ी से उतरोगे, पत्थर को उठाओगे, साइड पे रखोगे और आप आगे बढ़ जाओगे। सो सम एक्सटर्नल फैक्टर्स आर सॉल्वेबल। तो आपको देखना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा व्हाट इज सॉल्वेबल, व्हाट इज नॉट, और जो नहीं है उसका दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। So if you are really serious about increasing your productivity, doubling your business without investing any more time, without investing any more money, कल संडे है, बैठो खुद के साथ and write down all possible reasons under the sun, जो आपने किसी और को दिए, किसी और ने आपको दिए, या आपने खुद को दिए with regards to any goal in your life, और ये सारे के सारे reasons लिख डालो। आपके जितने भी reasons है ना, या तो they will be logical, or they will be intelligent, or they will be intellectual, or they will be practical, or they will be religious, or they will be spiritual, or whatever. At the end of the day, जब टाइम आता है ना काम करने का, या तो इंसान रिजल्ट प्रोड्यूस करता है या तो इंसान रीजन देता है, दो में से एक ही होता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से आप बैठोगे और ये 4 स्लाइड्स को लेके बैठोगे, आपको समझेगा ये सब मेरी ऊपर ऊपर की कमेंट्री है। अगर मैं ठीक से डायसेक्शन करूंगा और मैटर के नीचे जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा काम ना होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ 4 ही चीजें होती है: लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ रियलिटी, मिसिंग ऑन माई पार्ट, और मिसिंग ऑन पार्ट ऑफ द पर्सन आई एम डिपेंडेंट ऑन। बाकी सब बातें। तो that's what it is all about. Does it make sense to invest in building productive habits
around time, focus, clarity, reality? Can you please type sense in the chat box, or can you please type no in the chat box? One of the two. ओके, अब मैं 1.5-2 घंटे में सिखा के कितना सिखा दूंगा? Would you agree that you can actually double your performance, double your business without investing anything more than just understanding lack of time, focus, clarity, reality? I can't do this by end of today, even if I want to, but we don't have enough time. So if you are really interested in learning more about this, आज तो मैंने सिखाया है. I have created a whole system. I have created an implementation framework. I have created a set of tools. जब मैं आपको वो टूल सिखाऊंगा, वो सिस्टम सिखाऊंगा और आप उसको यूज करोगे और मेरी टीम से कोई ना कोई आपका हैंड होल्डिंग करेगा और आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, तब जाके आज आप जो सीखे हो वो आपके खून में घुसेगा. उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जब वो आदत बन जाएगी, you will naturally be able to produce far more results in far less time or effort. So if you want to know more about this, you will have to talk to Deep, and then we can collect some interest of people who are interested, and then we can put together a hardcore implementation batch where I will teach you how to implement these productivity tools to take your business to the next level. Okay, so you can really double your performance without adding any more stress or risk using Manan's time focus clarity reality model. It's a 45-day long process. 30 घंटे का काम होगा. उसमें 5 लाइव वर्कशॉप्स होती है जो मैं ही लीड करूंगा और 2 वर्कशॉप के बीच में आपका हैंड होल्डिंग और फॉलोअप होता है. तो ये 45 डेज के पीरियड में होता क्या है? सो इट्स अ लॉन्ग इंटेंस रिगरस एंगेजमेंट. लाइक आई सेड, वो 5 वर्कशॉप्स में मैं आपको हर वर्कशॉप में एक टूल सिखाऊंगा. आप वो टूल को इस्तेमाल करोगे, हम आपको वो टूल के ऊपर फीडबैक देंगे. मैं वो टूल कैसे भरता हूं मैं आपको वो सिखाऊंगा. आप वो टूल की प्रैक्टिस करोगे. 2 सेशन के बीच में, मान लो हमारा वर्कशॉप मंडेज को होता है फॉर एग्जांपल, तो एवरी वेडनेसडे एंड एवरी फ्राइडे मेरी टीम से कोई ना कोई बंदा प्रदीप सिंह रावत को फोन करके पूछेगा, सर 2 दिन हो गए, आपको इतना काम करना था, आपने कितना काम किया, कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ, आप कहाँ अटक गए, और वो आपका हाथ पकड़ पकड़ के आपको काम कराएंगे. आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर करेंगे और आपको वो पीछे से मोटिवेट करके आपसे काम करवाएंगे. फिर वापस 2 दिन के बाद वो आपको फोन करेंगे, पूछेंगे कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, कहाँ अटके हो, एंड दे विल हेल्प यू. और मेरे सारे के सारे टूल्स और ज्यादा डिटेल में वो आपको इस्तेमाल करना सिखाएंगे. फिर आप नेक्स्ट मंडे मेरे पास आओगे. हर हफ्ता, आज तो हम लोगों ने बहुत छोटा सा एक्सरसाइज किया जहां पे आप लोगों ने एक गोल लिया और उसके छोटे से स्टेप्स तोड़े जो मैंने देखे भी नहीं, और फिर भी आपको समझ में आ गया कि ये मेरा गोल नहीं होने वाला है और क्यों नहीं होने वाला है. हर हफ्ता आप मेरे सामने बैठ के 10 रिजल्ट्स लिखोगे. वो 10 रिजल्ट्स के चाय बनाने के स्टेप्स तोड़ोगे तो मान लो आप 60-70 एक्शंस लोगे. रोहन, वो सारे के सारे 60-70 एक्शंस आपके कैलेंडर में जाएंगे. मेरी टीम आपको हर ऑल्टरनेट डे पूछेगी कितना हुआ, कितना नहीं हुआ. हफ्ता खत्म होगा जब आप दूसरी बार मेरे सामने बैठोगे. जिंदगी में पहली बार आपके पास एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम होगी और दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ साफ साफ आपको दिखेगा कि मैं बोलता क्या हूँ, मैं करता क्या हूँ. और आप मार्किंग करोगे तो आपको पता चलेगा पहले हफ्ते में तो 10 में से मेरे 2 ही रिजल्ट हुए और 60 में से मेरे 10-15 काम ही हुए. फिर मैं आपको पूछूंगा बाकी के काम क्यों नहीं हुए. तो यू विल कम अप विद रीजंस, एक्सक्यूज, रैशनलाइजेशन, जस्टिफिकेशन, सब कुछ हम उसको एक फॉर्मेट में डालेंगे. देयर इज अनदर टूल कॉल्ड रीजंस एलिमिनेटर, हम आपको वो सिखाएंगे. आप वो सारे रीजंस लिखोगे और हम उसको टाइम फोकस क्लैरिटी रियलिटी में बाइफरकेट करेंगे. फिर आपको किस तरह से एक्शंस लेनी है वो हम आपको बताएंगे. फिर आप वापस आपका अगले हफ्ते का 10 रिजल्ट्स और 60 एक्शंस का प्लान बनाओगे. फिर वापस मेरी टीम आपको हैंड होल्ड करेगी एवरी ऑल्टरनेट डे. फिर आपको वापस आप तीसरे सेशन में आओगे. तीसरे सेशन में आओगे तो आपको समझेगा मेरा 10 में से 4 रिजल्ट हुआ और मेरे 60 में से 40 एक्शन हुए. अगले हफ्ते मेरा 10 में से 7 रिजल्ट हुआ, मेरे 60 में से 55 एक्शन हुए. अगले हफ्ते मैं अपने आप ही 10 की जगह 12 रिजल्ट कमिट कर पाता हूँ, 60 की जगह 80 एक्शन कमिट कर पाता हूँ, और अब मेरा 12 में से 10, 12 में से 11 रिजल्ट्स होने लगे और मेरे 80 में से 70-75 एक्शंस होने लगे. आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे. And as you begin to practice every week, हम करते क्या है? We are just replacing all your reasons and all your commentary with laws of productivity, and we are substituting it with time focus clarity reality. और ये प्रैक्टिस करते 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 people produce tangible results in a time bound manner on a very strong foundation of habits. So that's exactly the whole hand holding process.
मेरे टूल्स लाइफ टाइम फ्री रहेंगे। वी विल ऑल्सो गिव यू अ प्रोडक्टिव रिपोर्ट कार्ड जहाँ पे हम आपका ECG निकालते हैं आपकी आदतों का। बिफोर मनन वसा, व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद टाइम, फोकस, क्लैरिटी, रियलिटी, और आपकी प्रोडक्टिविटी की आदतों का क्या सर्वे है हम वो निकालते हैं, और वो हम सेम क्वेश्चंस आपको बाद में पूछेंगे। तो आपको VLCC स्टाइल में बिफोर एंड आफ्टर फर्क समझ में आ जाएगा कि मेरा टाइम, फोकस, क्लैरिटी, रियलिटी के साथ कितना रिश्ता बदला, मैंने कितने पैसे कमाए, मेरा कितना टाइम बचा, मैं कितना ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर लेता हूँ। एंड यू कैन कंपेयर इट विद द इन्वेस्टमेंट दैट यू मेक, and you will begin to realize, because all of you are in finance industry. Let me leave you with one thought, okay? So अगर मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा तो मैं आपसे कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का उम्मीद कर सकता हूँ साल का? 12%, 15%, 18%, कोई बम्पर साल निकला तो 30%, यस और नो? तो मैंने Yeah. अगर आपको 1 लाख रुपया दिया तो मैं ज्यादा से ज्यादा 1,30,000 रुपए की अपेक्षा रख सकता हूँ, उसके ऊपर तो नहीं रखना चाहिए, यस और नो? अब Yes. किसी बंदे ने नवंबर दिसंबर Yes. महीने में SIP शुरू किया होगा तो उसका तो 1 लाख रुपया शायद आज 60,000, 70,000, 80,000 हो गया होगा, यस और नो? Yeah. Yes. नाउ इफ आई गिव यू अ प्रोडक्ट जहाँ पे आप लाख रुपया डालो, कम से कम आपका 2 से 3 लाख बनेगा और आपका कैपिटल सेफ है, आपका पैसा टूटेगा नहीं, और जब तक आप वो पैसा रिटर्न नहीं कमा लेते तब तक आपके साथ फ्री में काम किया जाएगा। वुड यू लाइक समथिंग लाइक दिस? This is exactly what we do. 89% of the people who have worked with us, they end up making 2 to 3 times more money than what they are used to making on their own over a span of 3 months of working with us and forming these habits with us. और अगर कोई बंदा आके बोलेगा आई हैव नॉट रिकवर्ड माई इन्वेस्टमेंट, हम उनको कुछ नहीं पूछते, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वापस रिपीट कराते हैं। हम पैसे चार्ज नहीं करते पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिपीट कराते हैं, हम पैसे वापस भी नहीं देते। पर जब तक वो हमको लिख के नहीं देता that I have recovered my investment from us, we keep working with them free of cost. और इतने सालों में एक ही बंदा आया है जो मेरे पास पैसे वापस लेने आया और मैंने उनको बोला भाई साहब मैं जो बोल रहा हूँ एक और बार अटेम्प्ट करके देखो, नहीं जमता तो मैं आपको पैसा वापस दे दूंगा। वो बंदे ने अपना बिजनेस 3 गुना कर दिया वर्किंग विथ अस। अगेन लिसन टू इट वेरी केयरफुली, दिस इज नॉट अ मार्केटिंग पिच और अ सेल्स पिच। या तो आप अगर हर साल 20% से ग्रो हो रहे हो तो 20% का 40% हो जाएगा, और बहुत सारे लोगों के केसेस में लिटरली अगर आप महीने का 2-3 लाख कमा रहे हो तो यू विल एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग 4 to 6 lakh rupees just implementing these simple productivity tools that we are talking about. So that's what we have time for. And जाते जाते एक कहानी बताता हूँ and then I will give it to Deep. आप जिंदगी में हमेशा 2 तरह की कहानी सुना पाओगे। 2 कहानियां हैं, बच्चा मर गया या तो बच्चा जिंदा है। तो पहली कहानी कुछ इस तरह से चलती है। एक गांव था, गांव में एक फैमिली था, हस्बैंड वाइफ और बच्चा थे, और हस्बैंड और वाइफ दिहाड़ी का काम करते थे। वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे ईंट उठाने का काम करते थे। सुबह 10 बजे जाते थे और रात को 8 बजे आते थे। हस्बैंड वाइफ घर पे आते थे, बीवी खाना बनाती थी, तीनों खाते थे और सो जाते थे। एक दिन स्कूल में छुट्टी था तो बच्चा घर पे था, कुछ तो भी खेल रहा था, कुछ तो भी हो रहा था, और किसी चक्कर में वो बच्चे के सर पे चोट लग गई और खून निकलने लगा। तो खून निकलने लगा तो वहां से संदीप जा रहा था, तो संदीप ने देखा इसका तो खून निकल रहा है, तो संदीप ने बहुत कोशिश की खून रोकने की। तो संदीप को याद आया कि मेरे पास हैंडकरचीफ है, तो मैं वो हैंडकरचीफ से उसका खून रोकने का कोशिश करता हूँ। लेकिन संदीप को रियलाइज हुआ ये तो मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी में मार्क्स एंड स्पेंसर का मेरी बीवी ने वैलेंटाइन का तोहफा दिया हुआ है, तो मेरा रुमाल खराब हो जाएगा। तो मैंने वो रुमाल नहीं यूज किया और मैं दूसरे कपड़े ढूंढने लगा जिससे कि मैं वो बच्चे का खून रोक पाऊं। तो बच्चे का खून रोकने के लिए मैंने 3-4 कपड़े देखे लेकिन सब मैले पड़े थे। फाइनली मैंने एक ड्रॉअर खोला तो उसकी माँ की साड़ी मिली, तो वो साड़ी यूज करके मैंने वो बच्चे का खून रोकने का कैसे भी कोशिश कर लिया। इतने में मेरे को ख्याल आया कि इसका खून रोकने से भी काम नहीं होगा, इसको अस्पताल तो लेके जाना पड़ेगा। तो मैं सोचने लगा कि इसको अस्पताल कैसे लेके जाऊं। तो मेरे पास गाड़ी थी लेकिन मेरे को डर था कि वो खून के धब्बे मेरी गाड़ी में पड़ जाएंगे तो मेरी गाड़ी गंदी हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि अभी मैं रिक्शा कर लेता हूँ। मैंने रिक्शा रोकी और रिक्शा वाले को बोला कि पास की अस्पताल में लेके जाना है। तो रिक्शा वाले ने बोला सर 100 रुपया होगा। और संदीप को मालूम है कि नॉर्मली तो 20 रुपया ही लगता है, ये 20 का 100 बोलता है। देखो क्या जमाना आ गया है, क्या कलयुग आ गया है। रिक्शा वाला 100 रुपया बोल रहा है, 20 की जगह पे 80 रुपए का नुकसान मनन भाई कैसे चलेगा। तो मैंने छोड़ दिया और मैंने बोला जाने दो, रिक्शा में नहीं जाने का है, हम कुछ और देखेंगे। इतने में गांव वाले आ गए तो गांव वालों ने बोला चलो एक काम करते हैं, ये बच्चे को हम लोग
उठा के अस्पताल लेके जाते हैं। तो हम 4 लोग गए और हम लोगों ने बच्चे को कंधे पे उठा के उसको लेके गए, और हॉस्पिटल में जैसे ही बच्चे को एडमिट किया ना, तो बच्चा तो मर गया। ये है पहली कहानी। दूसरी कहानी है, एक फैमिली है किसी गांव में। माँ बाप 10 बजे सुबह जाते हैं, रात को 8 बजे वापस आते हैं, दिहाड़ी का काम करते हैं। और स्कूल में हॉलीडे था तो बच्चे को छुट्टी थी, किसी कारण से बच्चे को चोट लग गई। तो संदीप वहां पहुंचा और बहुत खून बह रहा था। संदीप ने इधर उधर दुनिया भर की मेहनत की, काम किया, ये किया, कैसे भी किया, उसको अस्पताल लेके गए, कैसे भी वो बच्चे का नंबर निकाला। और वो बच्चे का नंबर, वो माँ बाप का नंबर निकाला, माँ बाप सीधे अस्पताल आ गए। और अस्पताल आ गए तो संदीप ने बोला, क्या कर रहे हो भाई साहब, थोड़ा देखा करो, घर में इस तरह से चीजें रखोगे तो कोई गिर जाएगा तो सर में चोट लगेगी। तो बोलता है, ये सब हुआ कैसे? उसका बाप पूछता है। तो संदीप बोलता है, तुमको क्या जानने का है कैसे हुआ कि नहीं हुआ, खुशी मनाओ, तुम्हारा बच्चा जिंदा है। जब टाइम आता है काम करने का, जब टाइम आता है जिंदगी सुधारने का, जब टाइम आता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, जब टाइम आता है कि मैं कुछ कर दिखाऊं, जब टाइम आता है सपने पूरे करने का, अभिजीत आपके पास 2 चॉइस होता है। या तो बच्चा मर गया और उसका एनालिसिस, या तो बच्चा जिंदा है। चॉइस इज ऑलवेज योर्स। आई जस्ट वांट टू लीव यू विद वन पार्टिंग थॉट। Every time you want to execute a goal, every time you want to fulfill a goal, every time you want to accomplish something big in life, you will always have a choice, either to produce results using these laws of productivity, or you will have reasons. बच्चा या तो मरेगा या तो बच्चा जिंदा होगा। आपके पास हर पल चॉइस है, सुनने का कि बच्चा मर गया कि बच्चा जिंदा है दूसरों से, और बताने का बच्चा मर गया कि बच्चा जिंदा है, जब आप एक्शन मोड में हो और जब आपको कुछ काम करना होता है। That's all that I want to leave you people with. So whoever is interested in participating in a long format, जहाँ पे हम ये चीज़ों को implement कैसे करते हैं वगैरह, my request to you is leave your names with Deep. Please write interested in the chat box here also. We'll make a PPT. I'll send it to Deep. Deep will circulate it to all of you people. And Deep is considering doing something as a special batch, either physically or on Zoom, or maybe we will do in a hybrid mode. तो उसमें सारी डिटेल्स आ जाएगी। मेरे दुनिया भर के केस स्टडीज है, दुनिया भर के लोगों के टेस्टिमोनियल्स वगैरह है, वो गूगल रेटिंग्स आप पढ़ लीजिए, लिंक्डइन टेस्टिमोनियल्स पढ़ लीजिए। मैं जो पीपीटी भेजूंगा दीप को, दीप आपको भेज देंगे, आप उसमें भी पढ़ सकते हो। किसी ने मेरा मोबाइल नंबर मांगा, सो माई मोबाइल नंबर इज 8097010410 एंड माई email is manan@unleash.in। सो जो लोगों को चाहिए वो मैंने लिखा है, दीप के पास भी अवेलेबल है। सो whoever wants to participate in a long format, we can create a batch where I can actually teach you my entire tools and my entire framework, and we'll teach you how the hand holding process works. If possible, I'll also send you another 1.5 hour of video जहाँ पे exactly मेरा process क्या है, मेरे tools क्या है वगैरह, आप उसको देख सकते हो, and then you can decide if you would be interested or not. Does that make sense, guys? 300 रुपए। वंडरफुल। मैंने मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस चैट में डाला है। whoever needs it, you can take it from there. 70 So if there is anybody who has any questions, or if there is anybody who wants to say something, now is a good time. Otherwise, Deep, it's over to you, and then we can call it a day. If you're having, अगर आपके कुछ questions है तो मनन is here, तो आप पूछ सकते हो। मतलब I'm sure that मनन program आपको बहुत अच्छा लगा। That is not the question at all. I know मनन since long now. So any question अगर आपका है तो आप पूछो please. We should adopt it. Yes, please go ahead. Any question? No question? All right. Yes, तो मनन का प्रोडक्टिविटी शास्त्र इज ऑलवेज अ ग्रेट स्टफ। और मनन बहुत अच्छे से करवाता है। If we are not having question, then I would request Ashwini to have the formal. Thank you. Thank you. Thank you very much, Manan, for amazing session that way. Yes. Thanks a lot, sir. It's a wonderful, really wonderful session. Thank you. Thank you so much. Thank you, Manan sir. Thank you. Yeah, Ashwini. On behalf of everyone here, I would like to extend a heartfelt thanks to Mr. Manan Vasa sir
for his insightful session on the topic of Productivity Shastra. Your expertise and clear explanation of complex trends have given us a deeper understanding of where the market is heading and how we can navigate it effectively. Your practical advice and forward-looking perspective are invaluable, especially in these dynamic times. Thank you once again, sir, for sharing your knowledge and guiding us. Thank you. Got it. Thank you, Thank you Manan, sir. so much. It थैंक यू was Thank you. मिलन और जो भी इंटरेस्टेड लोग रहेंगे आपके प्रोग्राम के लिए दिस सर्टेनली आई विल शेयर द नंबर्स एंड द कनेक्ट्स ऑफ योर्स नेटवर्क थैंक यू वेरी मच sure. थैंक्स I'll send the फॉर जॉइनिंग presentation and Thank everything. you and everyone for joining this entire session. Objective is very simple. आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, आपका धंधा बढ़े, आपके पैसे बढ़े, आपकी अर्निंग बढ़े, आपका रिसोर्स बढ़े, आपका रेवेन्यू बढ़े और आप आगे बढ़े. That is the only objective what Imperial Money is सही having बात सर. to really add entire value system in your life. That is the only thing which जो मुझे हमेशा अच्छा लगता है. Thank you very much. Okay. Thanks Thank you, Manan for sir. coming all the way. I know तुम्हारे एक सेकंड गिनते हो. मुझे पता है तुम्हारा every single second is matters for us. Thanks a lot. Thank Thank you. you so Thank much. God bless you all. Bye-bye. Thank you, sir. Bye. It was really great session. Thank you. Thank you so much. It really means a lot. Please use it the way you can, okay? Wonderful. Thank See you. you. Bye-bye. Take care. God bless Take you care. all. Sure. Take care. Shall I take your leave? Yeah, please, everyone. Yes, All please. right.